تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج کے اپنے اس سیشن کو، یہ کہہ سکتے ہیں اس خوبصورت اور لاجواب سیشن کو جو ہے وہ ہم لوگ شروع کریں گے۔ تو پہلا سوال ہے آپ کے موبائل کی، لیپ ٹاپ کی یا آئی پیڈ کی اسکرین پر، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کچھ بچے امیر ہوں، حالانکہ آج کل جو ہے وہ کاکروچ پارٹی کا زیادہ رجحان ہے، تو اس کے حوالے سے بھی آپ لوگ اس کاکروچ پارٹی کی جو مہم ہے یا کہہ سکتے ہیں اس طریقے کی جو بھی آئیڈیالوجی ہے اس کو آپ لوگ اپنے خواب سے جو ہے وہ مکمل کر کے دور کر سکتے ہیں، اور آپ کے خواب کو مکمل کرنے کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر اور اس کے ساتھ ساتھ چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی کے کندھوں پر بھی ہے، اور اسی لیے آپ کی کندھوں کی ذمہ داری کو ہلکا کرنے کے لیے یا آپ کے خواب کو مکمل کرنے کے لیے یہ سیشن کی ہم نے شروعات کیا اور یہ ایگزام تک چلتا رہے گا۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے بسم اللہ کرتے ہیں یا شری گنیش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے آپ کی موبائل کی اسکرین پر، پہلی بار اردو زبان کی تاریخ لکھنے کا صحرا کس کے کہا جاتا ہے یا کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس میں 4 آپشن ہیں: الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، ڈپٹی نذیر احمد اور مالک رام۔ تو تاریخ لکھنے کا جو پہلا صحرا ہے وہ جاتا ہے محمد حسین آزاد کا، اور اردو کی پہلی تاریخ کی کتاب کو مانا جاتا ہے آب حیات، جو کب لکھی گئی؟ 1880 میں لکھی گئی، جو اس کا پہلا ایڈیشن تھا، یعنی کہ فرسٹ ایڈیشن۔ لیکن ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ اس کا سیکنڈ ایڈیشن کب شائع ہوا، تو 1883۔ آپ لوگوں کا یو پی کا ایگزام ہے تو یاد رکھ سکتے ہیں اتر پردیش اردو اکیڈمی لکھنؤ سے یہ کتاب شائع ہوئی تھی، جس میں 29 شعراء کا ذکر ہے۔ جو پہلے ہوئے تھے 1880 میں، اس میں 28 تھے، اور سیکنڈ میں جو ہے وہ 29 تھے، اور سیکنڈ میں جو ایک اضافہ ہوا تھا وہ ہوا تھا مومن کا۔ تو آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں، اور 29 شعراء کو جو ہے وہ کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 5 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک سوال یہاں سے بھی آتا ہے کہ کون سے ادوار میں سب سے زیادہ شاعروں کا ذکر ہے؟ تو 9 شاعروں کا ذکر ہے 5ویں باب میں، تو یہ بھی آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں، اور مومن بھی 5ویں باب میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ اگلا سوال ہے، 9 طرز مرصع کس کی تصنیف ہے؟ میر امن کی، میر محمد عطا حسین خان تحسین کی، جان گلگرسٹ کی، یا رجب علی بیگ سرور کی؟ تو 9 طرز مرصع جو ہے وہ کس کی تصنیف ہے؟ آپشن 2 ہو جائے گا، اور یہ لکھی گئی تھی 1775 میں۔ ایئر بھی آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ریختہ ذیل میں دی گئی کس زبان کا قدیم نام ہے؟ قدیم سے مراد ہوتا ہے پرانا، تو ریختہ جو ہے وہ ہم لوگ اردو کا مانتے ہیں، تو آپشن اے جو ہے وہ صحیح آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، اردو نثر کی ترقی میں کس نے نمایاں انجام دیا یا کس نے اس کو زیادہ فروغ دیا؟ آریہ سماج، ہندو کالج، فورٹ ولیم کالج یا برہم سماج؟ تو آنسر ہو جائے گا فورٹ ولیم کالج، جس کی استھاپنا یا جس کی بنیاد 1800 میں رکھی گئی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں، ذیل میں دی گئی شخصیت میں سے کون سا ماہر لسانیات نہیں ہے؟ لسانیات کا مطلب ہوتا ہے لنگوسٹک جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس میں آپ کو بتانا ہے کون سا نہیں ہے: آزاد، گیریسن، سودا یا شیرانی؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3، مرزا محمد رفیع سودا جو ہے وہ ماہر لسانیات نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، غزل کے پہلے نقاد شمار کیے جاتے ہیں: محمد حسین آزاد کو، الطاف حسین حالی کو، غالب کو یا علامہ اقبال کو؟ کوشچن نمبر 6 ہے، تو غزل کے جو پہلے نقاد ہیں وہ مانے جاتے ہیں الطاف حسین حالی کو، اسی لیے الطاف حسین حالی نے اپنی مشہور کتاب جس کا نام ہے مقدمہ شعر و شاعری، اس میں بتایا ہے کہ غزل بے وقت کی راگنی ہے، اور یہ کتاب 1893 میں شائع ہوئی 2 حصوں میں، اور اس کو ہی اردو تنقید کا بوتیکا کہا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ریختہ کا نمائندہ شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ کوشچن نمبر 7 ہے، آسان سوال ہے، آپشن ہو جائے گا 3، یعنی کہ انشا کو ریختہ کا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، وہ صنف شاعری جس میں صرف داخلی پہلو کا عمل داخل ہوتا ہے یا دخل ہوتا ہے، وہ کون سی ہے؟ تو جو دل سے چیز نکلتی ہیں وہ ہماری غزل میں نکلتی ہیں، تو اس کا آپشن ہو جائے گا اے۔ اور اردو میں جو سب سے قدیم صرف مانی جاتی ہے وہ بھی غزل کو ہی مانی جاتی ہے، اور غزل کا جو ہم لوگ پہلا شاعر مانتے ہیں وہ مانتے ہیں امیر خسرو کو، تو یہ بھی آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، قصہ تاج الملوک اور بقاولی کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کس نے کیا تھا؟ یہ ترجمہ کا صحرا کس نے باندھا تھا؟ کوشچن نمبر 9 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ نہال چند لاہوری، لیکن یہ انہوں نے کیا تھا نثر میں۔ لیکن اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ قصہ تاج الملوک کا جو ہے وہ اردو سے فارسی میں ترجمہ نثر کے علاوہ شاعری میں کس نے کیا، تو آنسر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، تو اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ یاد رکھ لیجیے گا، ایگزام میں جو ہے وہ اکثر پوچھا جاتا ہے، اور وہ ہے ہمارے
एक मुसन्निफ़ है, उनका नाम आपको पता होगा, एग्ज़ाम में कई बार हवाले से भी आया है, और वो जो है वो मज़हब इश्क है, और उसका जो है वो उर्दू में तर्जुमा हुआ है, जिसका जो है वो निहाल चंद लाहौर ने किया है। लेकिन शायरी में भी जो है वो एग्ज़ाम में सवाल आता है। गुलजार नसीम, आपने दास्तान मसनवी पढ़ी होगी, उसी के मुसन्निफ़ गुलजार नसीम है, उसी का ये किस्सा उसमें बयान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। गज़ल के लुग़वी मायने क्या हैं? आसान सवाल है। औरतों से कलाम करना, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मीर तकी मीर ने दिल्ली से नकली मकानी करके किस शहर को अपना मस्कन बनाया था? यानी कि जब उन्होंने दिल्ली को खैराबाद किया तो वो कहाँ गए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लखनऊ। और लखनऊ में भी नवाब आसिफउद्दौला के यहाँ पर 200 रुपये में मुंशी के ओहदे पर इन्होंने क्या किया था? काम किया था। आगे बढ़ते हैं। बकौल रशीद अहमद सिद्दीकी डैश उर्दू शायरी की आबरू है, तो किसको कहा गया है? तो आपको बताना होगा, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, और सबसे कारआमद सिन्फ मसनवी को माना जाता है उर्दू शायरी की, और ये बात कही है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। आगे बढ़ते हैं। मसनवी दरियाए इश्क किसकी तख्लीक है? बड़ी मशहूर है दरियाए इश्क। जब भी इश्क का नाम आ जाए तो आप लोग आंसर मीर लगा सकते हैं, चाहे दरियाए इश्क हो, मामलात इश्क हो, एजाज इश्क हो, सारी जो है वो ज़्यादातर मीर की है। लेकिन 3 मसनवी आप लोग याद रख लीजिएगा जो आपके निसाब में भी है, ज़हर इश्क, फ़रेब इश्क और बहार इश्क, ये तीनों की तीनों जो है वो किसकी हैं? शौक लखनवी की हैं। बाकी इश्क की जो है ज़्यादातर मीर की हैं। आगे बढ़ते हैं। मीर अमन के माया नाज तसनीफ़ कौन सी है? आसान सवाल है, ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी कि बाग़ो बहार। क्वेश्चन नंबर 15, हम तक सबसे पहले कौन सी नसरी दास्तान पहुँची है? मीर अमन की बाग़ो बहार, हैदर बख्श हैदरी की आराइश महफिल, तहसीन की 9 तर्ज मुरस्सा और ज़री की 9 तर्ज मुरस्सा। तो पहली नसरी दास्तान हमारे पास पहुंची है ऑप्शन 3, 9 तर्ज मुरस्सा 1775 में, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। हालांकि एक और है 1770 में ईसवी खान की, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो कुछ सवाल हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। उर्दू ज़बान किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? द्राविडी, हैयती, आर्याई या तखारी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आर्याई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये एक शेर है, शुगल बेहतर है इश्कबाजी का, क्या हकीकी का क्या मजाजी का? ये किस शायर का है? वली का है, नासिर का है, मीर का है या जिगर का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये वली दक्कनी का शेर है। आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता एक अदबी शख्सियत कौन है मंदरजा झेल में से? तो फोर्ट विलियम कॉलेज का ताल्लुक किससे है? मीर अमन से, जिनका करार 1801 में हुआ था और ये 1806 में यहाँ से चले गए थे। यानी कि 5 साल मीर अमन ने जो है वो किसको खिदमत दी थी? फोर्ट विलियम कॉलेज में, और इन 5 सालों में उन्होंने सिर्फ 2 किताबें लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं। झेल में दिए गए शायरों में से किसे गज़ल के मुतक़द्दिमीन शोरा में शुमार किया जाता है? तो जब भी गज़ल का नाम पहले आता है तो आंसर हो जाता है वली दक्कनी। हालांकि आतिश लखनवी भी और नासिक भी जो है वो गज़ल के हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक बहुत अहम शायर के बारे में बात किया गया है, क्योंकि वली को जो है वो उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है, और इसके अलावा इसको जो है वो उर्दू का चासर भी कहा जाता है। तो आंसर आपका ऑप्शन ए दुरुस्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आराइश महफिल का असल मकसद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, खुलासतुत तवारीख। क्वेश्चन नंबर 21, अकबरी और असगरी किसके नावल के किरदार हैं? ये डिप्टी नज़ीर अहमद के किरदार हैं और ये उनका ही नावल है, ऑप्शन 2, मिरातुल उरूश, जो उनका जो है वो पहला नावल माना जाता है 1869 में, जो अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर असर लिखा गया। तौबत नसूख का ईयर इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, 1874, जो एक उन्होंने कुरान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जिस शेर में 8 रुकन हो या 8 मिसरे हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग मुसम्मन कहते हैं। तो यहाँ पे मुसम्मन हो गया ऑप्शन 2। मुसद्दस में कितने होते हैं? 6। मुसब्बा में कितने होते हैं? 7। मुरब्बा में होते हैं 4। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद की सवाने किसने लिखी? या सवाने निगार कौन है? तो उनके शागिर्द हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, ऑप्शन हो जाएगा 3। और कब लिखी? तो ईयर भी लिख लीजिएगा 1927। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानियों का मजमुआ क्या है या मौजू क्या है? थोड़ा टाइपिंग एरर हो सकता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि समाजी और इस्लाही। क्वेश्चन नंबर 25, लिसानियात की वो साख जिसमें लफ्ज़ के हर ज़ाहिरी मायने के बजाय उसके बातिनी मायने से बहस की जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर है 25 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इल्म नहू। क्वेश्चन नंबर 26, मीर तकी मीर के ममदूद हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3,
नवाब आसफुद्दौला करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जो लखनऊ से वाबस्ता थे या लखनऊ में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 27, झेल में दी गई कौन सी नसरी तसनीफ डिप्टी नज़ीर अहमद की नहीं है? तो कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जिसमें नहीं है पूछा जाता है। तो बिनातुल नास, मिरातुल उरूज और इब्नुल वक्त तीनों जो है वो नॉवेल हैं डिप्टी नज़ीर अहमद के। तो ये है गधे की सरगुजिश जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद की नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका पर ख्वाजा महमूद शिरानी की मशहूर तसनीफ़ का नाम क्या है? पंजाब में उर्दू, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। इंडियन पेनल कोड के उर्दू तर्जुमे जिसका नाम है ताजरात हिंद का सेहरा किसे जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद को, क्योंकि उन्होंने आईपीसी जिसे हम लोग इंडियन पेनल कोड के नाम से जानते हैं उसका तर्जुमा अंग्रेजी से उर्दू ज़बान में किया था ताजरात हिंद के नाम से। आगे आते हैं। मीर के वालिद का क्या नाम था? इजी सवाल है, ऑप्शन 4 अली मुत्तकी। इल्म उरूज का मुअज्जिद किसे कहा जाता है? इल्म उरूज उर्दू कवायद के 5 हिस्से होते हैं, उसमें जो सबसे लास्ट है उसमें इल्म उरूज आता है। पहला आता है आपके लिए इल्म हिजा, दूसरा आता है आपके इल्म सर्फ, तीसरा आता है आपका इल्म नहू, चौथा आता है इल्म बयान और पांचवा आता है आपका इल्म उरूज। तो पांचवे का जो है वो बताना है इसके मुअज्जिद या इसके बानी कौन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 खलील अहमद बसरी को। क्वेश्चन नंबर 32, मीर तकी मीर से मंसूब शोरा का तज़किरा कौन सा है? यानी कि मीर तकी मीर ने कौन सा तज़किरा लिखा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 निकात शोरा, जो कब लिखा गया? 1751 या 52 में। ये 103 शोरा का तज़किरा है जो लिखा गया है फ़ारसी ज़बान में, और उसमें उन्होंने सबसे पहले अपने उस्ताद खान आरजू का जो है वो जिक्र किया है। आगे बढ़ते हैं। शमशुल उलमा झेल में से किसका लक़ब है? रजब अली बेग सुरूर, मीर शेर अली अफसोस, अब्दुल हलीम शहर या डिप्टी नज़ीर अहमद। क्वेश्चन नंबर 33 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 डिप्टी नज़ीर अहमद। वो मुकर्रर अल्फाज जिनसे बहर बनती है उनको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा 2 अफ़ाइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इस्तिलाह में सबब के दूसरे हर्फ में तगय्युर तबद्दुल कमी बेशी और साकिन करने को क्या कहते हैं? इल्लत, ज़हाफ़त, कब्ज़ु या वतद। क्वेश्चन नंबर 35 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, उर्दू ब्रज भाषा से पैदा हुई ये नज़रिया किसका है? आसान से सवाल है, ऑप्शन 2 हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद, और ये बात उन्होंने अपनी किताब आब हयात में जो है वो कही है। आगे बढ़ते हैं। उर्दू में मुसल्लस व मुरब्बा नज़में किसकी ऐजाद हैं? मुसल्लस कहते हैं जिसमें 3 मिसरे होते हैं और मुरब्बा जिसमें 4 मिसरे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मीर तकी मीर को। आगे बढ़ते हैं। उर्दू ज़बान के मायने लश्कर किस ज़बान में है? तुर्की में है, फ़ारसी में है, अरबी में है या संस्कृत में है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि उर्दू जो है वो किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान के लफ्ज़ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अरस्तु ने इसे सफ़ाई ख़याली की कलीद से ताबीर किया है। क्वेश्चन नंबर 39 है। तशबीह को, इस्तारा को, हुस्न तालील को या मुबालगा को? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि इस्तारा को सफ़ाई ख़याल की कलीद कहा है अरस्तु ने। आगे बढ़ते हैं। तू मेरे हाल से गाफिल है पर आया गफलत केश, तेरे अंदाज़ तगाफुल नहीं गफलत वाले। इसमें जो है वो कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है? तशबीह का, इस्तकाक का, कनाया का या तलमी का? तो तलमी भी नहीं है और तशबीह भी नहीं है, किनाया भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इस्तकाक। क्यों? गाफिल, गफलत, तगाफुल और गफलत ये जो है वो एक से ही क्या है मिल के बने हैं। क्वेश्चन नंबर 41। सिराज औरंगाबादी की एक अहम और मारूफ मसनवी जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक मुआसिर वाक़या बयान किया है वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 41 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बूस्तान ख़याल। अली नामा नुसरती की है। गुलशन एक आपने पढ़ा होगा, मनोहर मधुमालती का इसमें किस्सा बयान किया गया और दरियाए इश्क हमने अभी पढ़ी मीर तकी मीर की है। आगे बढ़ते हैं। गोलकुंडा जैसी अजीम सल्तनत का फरमाबरदार हैदराबाद शहर का बानी, उर्दू का एक रफ़ीउल मुरत्तब शायर, मंदरजा बाला कलिमात किसके लिए इस्तेमाल हुए हैं? तो एक ही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिनको हम लोग
اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر بھی تسلیم کرتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ سب سے زیادہ تخلص استعمال کی ہیں 17 اردو میں اور ایک ملا کے 18واں ترکمان، جو انہوں نے تیلگو زبان میں کیا ہے، اکثر ایگزام میں جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو کل 18 ہیں، ویسے آپشن میں 17 بھی آ جاتا ہے۔ اردو میں قرآن شریف کے پہلے ترجمے کا آغاز کس نے کیا؟ امپورٹنٹ ہے شاہ رفیع الدین، آپشن 2۔ آگے بڑھتے ہیں، قواعد کا وہ حصہ جس میں جملوں سے بحث کی جاتی ہے وہ کون سا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، علم نحو۔ اگر یہاں پہ جملوں کی جگہ الفاظ آ جاتا یا لفظ آ جاتا تو آنسر ہو جاتا آپ کا علم صرف، علم عروج، جس میں اردو کی تمام شعری، نثری اصناف پر بحث کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بحروں پر بھی جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ علم بیان کے ارکان یہ ایگزام میں آتا ہے، کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے تشبیہ، دوسرا ہے استعارہ، تیسرا مجاز مرسل، اور چوتھا جو ہے وہ کنایہ۔ یہ جو ہے وہ علم بیان کے 4 ارکان ہیں، اکثر ایگزام میں آتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ظہور الدین شاہ حاتم کے ہم اصل کون تھے؟ کوشچن نمبر 45 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی کہ فغا۔ آگے بڑھتے ہیں، نواب مرزا شوق کی ایک مشہور مثنوی ہے، اوپر بتایا تھا آپشن 4 زہر عشق۔ کوشچن نمبر 47 ہے، میر غلام حسین زاہد کے شاگرد جنہوں نے اردو ادب کی ایک شاہکار مثنوی لکھی ہے ان کا نام کیا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا ان کے بیٹے یعنی کہ میر حسن، کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، مثنوی سحر البیان کس کے نام سے معین کی گئی ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 48 کا آپشن 4 نواب آصف الدولہ کے نام سے۔ کوشچن نمبر 49، درسی کتابوں کی فراہمی کے واسطے دارالترجمہ کا قیام کی یونیورسٹی میں عمل میں آیا تھا؟ کس یونیورسٹی میں عمل میں آیا؟ تو آنسر ہو جائے گا عثمانیہ۔ کب آیا؟ 1917، اور کب تک؟ 1955 تک۔ اس کے بعد اس میں آگ لگ گئی تھی تو اس لیے جو ہے وہ اس کو آگے نہیں بڑھا پائے۔ آگے بڑھتے ہیں، مثنوی گلزار ارم کے خالق کون ہیں؟ کوشچن نمبر 9 ہے، اور کوشچن نمبر 50 ہے، تو آنسر ہو جائے گا اس کا آپشن 4 میر حسن۔ میر حسن کی جو ہے وہ اکثر ایگزام میں پوچھی جاتی ہے گلزار ارم۔ کوشچن نمبر 51، مثنوی رموز العارفین کا خالق کون ہے؟ میر حسن، میر تقی میر، غالب یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے میر حسن۔ کوشچن نمبر 52، ارسطو کی مشہور زمانہ کتاب بوتیکا کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ عزیز احمد، عرفان صدیقی، احمد ندیم قاسمی یا مشتاق احمد؟ تو آنسر ہو جائے گا عزیز احمد نے مشہور تصنیف کا جو ہے وہ ترجمہ کیا تھا بوتیکا کا۔ اس کے علاوہ آپشن میں اگر شمس الرحمن فاروقی آ جاتا ہے تو وہ بھی آپ لوگ آنسر لگا سکتے ہیں، کیونکہ عزیز احمد کے بعد شمس الرحمن فاروقی نے بھی جو ہے وہ ارسطو کی کتاب بوتیکا کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عزیز احمد نے منشی پریم چند کے مشہور افسانے کفن کا بھی جو ہے وہ ترجمہ کیا، اور یہ اردو سے انہوں نے انگلش میں کیا تھا، اور کہاں سے کیا تھا؟ کلکتہ سے۔ یہ بھی آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، تخلیقی ترجمہ کس کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ آنسر ہو جائے گا آپشن ہے متعدل ترجمہ۔ کوشچن نمبر 54، معرفت کا تعلق کس سے ہے؟ ریاضیات، تاریخ، معاشیات یا لسانیات؟ تو لسانیات کے 4 ارکان ہوتے ہیں، اسی میں سے ایک ہے معرفیات۔ آگے بڑھتے ہیں، رام بابو سکسینہ کس زمانے کو اردو شاعری کی سب سے بڑی ترقی کا زمانہ مانتے ہیں؟ آپشن ہو جائے گا 4 میر اور سودا کی۔ کوشچن نمبر 56، مثنوی کتب مستری میں محمد قلی قطب شاہ کے معشوقانہ کی داستان کون سی ہے؟ تو کتب مستری جو ہے وہ ایک مثنوی ہے جس میں محمد قلی قطب شاہ اور بھاگمتی کی داستان کو بیان کیا گیا ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ بھاگمتی۔ اور یہ مثنوی کب لکھی گئی؟ یہ لکھی گئی 1609 میں۔ اگر سن پوچھا جائے تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں 1609، ہجری پوچھی جائے تو 1018، اور یہ گولکنڈہ کی پہلی تبازات مثنوی بھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، منوہر مدھو مالتی کے عشق کی داستان کس مثنوی میں بیان کی گئی ہے؟ تو میں نے ابھی آپ کو اوپر بتایا تھا، آنسر ہو جائے گا 4 یعنی کہ گلشن عشق۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 58، ہندوستان میں ترجمہ کا پہلا ادارہ جہاں منظم اور باقاعدہ طور پر عربی، فارسی اور سنسکرت سے اردو میں تراجم ہوئے یعنی کہ ٹرانسلیشن ہوئے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 58 کا آپشن 4 یعنی کہ کلکتہ، اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 58 کا آپشن 4 کلکتہ۔ حالانکہ آپشن میں
फोर्ट विलियम कॉलेज भी है, तो दोनों ही आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन 4 भी हो सकता है कि कलकत्ता पहले आया, फोर्ट विलियम कॉलेज उसमें कायम किया गया। आगे बढ़ते हैं, इब्न निसाती की एक तसनीफ़ का नाम क्या है? तो इब्न निसाती की एक ही मशहूर मसनवी है जिसका नाम है फूलबन, जिसमें 39 सनतों का जो है वो इस्तेमाल किया गया, और इसमें जो है वो 6 किस्से हैं, जिसमें से 3 मेन है और 3 जो है वो सपोर्ट में है। ये हम लोग कह सकते हैं 3 मरकज़ी हैं और 3 ज़मनी किरदार किस्से हैं। क्वेश्चन नंबर 68, रुबाइयात ख़याम का उर्दू में मंजूम तर्जुमा किसने किया? क्वेश्चन नंबर 60 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 आदिल असीर दहलवी ने। क्वेश्चन नंबर 61, फ़कीर मोहम्मद गोया के ज़रिए मुतरजमा अनवर सहेली का उर्दू तर्जुमा झेल में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 61 है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 बिस्तान हिकमत। क्वेश्चन नंबर 62, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब, यह किसका कौल है? अब्दुल सलाम नदवी का, अब्दुल रहमान बिजनौरी, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग या रशीद अहमद सिद्दीकी? तो आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान बिजनौरी, और ये एक किताब है उनकी जिसका नाम है मुहासिन कलाम गालिब, बहुत मशहूर किताब है, उसमें उन्होंने जो है ये बात कही है। आगे बढ़ते हैं, नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क का खिताब किस शायर को मिला है? नासिफ, ज़ौक़, मीर और गालिब? तो आंसर हो जाएगा गालिब को। मीर को हम लोग खुदाए सुखन कहते हैं, ज़ौक़ को हम लोग खाकानी हिंद कहते हैं, और नासिफ को जो है वो हम लोग अदबी डिक्टेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अदबी डिक्टेटर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, वली ने अपनी शायरी में बुनियादी तौर पर मौजू बनाया तसव्वुफ़ को, ऑप्शन 4 रेख्ता का मुअज्जिद और उर्दू का चासर वगैरह अलकाब किसे नवाजा जाता है या किसे ये मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वली को, क्योंकि उर्दू का चासर वली दखनी को कहा जाता है। उर्दू मुअल्ला और ऊद हिंदी का मौजू क्या है? ये दोनों जो है वो मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब की तसनीफ़ है, उर्दू मुअल्ला और ऊद हिंदी। उर्दू मुअल्ला और ऊद हिंदी जो है वो गालिब के खुतूत के मजमूए हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि खुतूत, और ये 1868 और 1869 में जो है ये शाये हुए। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के लोकगीत किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सैफुल हक की। क्वेश्चन नंबर 68, मिर्ज़ा गालिब की शादी किस ख़ानदान में हुई जिनको उनको उर्फियत मिली थी नौशा की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 लोहारों में। क्वेश्चन नंबर 69, फजली ने किस असर को नस्ल के कलम में ढालकर शोहरत अब्दी हासिल की? क्वेश्चन नंबर 69 है, तो फजल अली खां फजली की आप लोग जानते हैं, वो है धाम मजलिस, जिसे हम लोग करबल कथा के नाम से भी जानते हैं, तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 12 मासा का एक नमूना है, कौन है? तिलस्मे होशियार, दास्तान गुलबकावली, विकट कहानी या मनोहर मधुमालती की कहानी? तो 12 मासा को क्या माना गया है? विकट कहानी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, एक जन महजूर के लम्हात जुदाई की नक्श गिरी आम तौर पर किस सिन्फ शायरी में मिलती है? क्वेश्चन नंबर 71 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 12 मासा। वली की जाए पैदाइश कहाँ हुई? औरंगाबाद, भोपाल, लखनऊ या हैदराबाद? तो आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। कब हुई? 1668 1668 में, और वफ़ात 1720 में हुई हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं, उर्दू ज़बान की सबसे ज़्यादा मशहूर और कदीम सिर्फ़ नहू की किताब कौन सी है? यानी कि उर्दू कवायद की पहली किताब कौन सी मानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा दरियाए लताफ़त, जो 1801 में लिखी गई, जिसका मुसन्निफ़ का नाम है इंशा अल्लाह खां इंशा। आगे बढ़ते हैं, बदिउल जमाल और सैफुल जमाल का किस्सा किस किताब से लिया गया है? तिलस्मे होशियार, हफ्ता औरंग, सहरुल बयान या अलिफ लैला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अलिफ लैला से। आगे बढ़ते हैं, गालिब किस तुर्क कौम से ताल्लुक़ रखते हैं? ऐबक, राजपूत, अरलास या चुगताई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ऐबक, और आप लोगों ने पढ़ा होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने जो है वो क्या किया था, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था 99 में, और ये मुकम्मल हुई थी 1227 में, जिसे मुकम्मल किया था इल्तुतमिश ने। हालांकि कहीं कहीं पर आपको ये 1229 भी जो है वो देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, एक शेर है, ये आपको बताना है किसका है। क्वेश्चन नंबर 70,
6 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये वली दखनी का शेर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, झेल में या मंदरजा झेल में कौन सा असर गालिब के उर्दू खतूत का मजमूआ है। तो अभी आपको ऊपर बताया था चारों तसनीफ़ जो है ये गालिब की है, लेकिन यहाँ पर खतूत पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ओद हिंदी। क्वेश्चन नंबर 78, असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है। अल्लामा शिबली नोमानी, सर सैयद, डिप्टी नज़ीर अहमद या अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां की असबाब बगावत हिंद, जो 22 बाब पर जो है वो मुश्तमिल है। इसके ज़बान क्या है, फ़ारसी है, और ये ऐसी किताब है जो आवाम के लिए शायद नहीं हुई थी, बल्कि ये 1858 में पार्लियामेंट में भेजी गई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजी गई थी, और उसमें बताया गया था कि जो ये 1857 की गदर हुई है, इसमें जो मुसलमानों का हाथ नहीं था, और ये वहाँ पर भेजी गई थी, असबाब बगावत हिंद। आगे बढ़ते हैं, जदीद रंग की किताब में जिसमें ख़याली अफसानों और ख्वाब के पर्दे में उम्दा इखलाकी नताइज बयान किए गए हैं, उसका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 79 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नारंग ख्याल, जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की क्या है, एक तसनीफ़ मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 80, हाली ने हयात जावेद में किसके सवाने लिखी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सर सैयद अहमद खां की 1801 में, और हाली ने 3 लिखी हैं, और इनको जो है वो सवाने का बानी भी माना जाता है, जिसमें पहली लिखी है हयात सादी की, और उसके बाद 1897 में गालिब की, जिसका नाम है यादगार गालिब, और उसके बाद सर सैयद की हयात जावेद 1901, माफ़ कीजिएगा 1901। आगे बढ़ते हैं, कुरानो सैयदी नामी अखबार कहाँ से शाये होता था। क्वेश्चन नंबर 81 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली से। अबरंज की एक ख़ास किस्म कौन सी है। ऑप्शन 3 हो जाएगा मागदी। क्वेश्चन नंबर 83, मलिक मोहम्मद जायसी की मशहूर ज़माना तसनीफ़ पद्मावत किसकी ज़बान में लिखी गई है, या किस ज़बान में लिखी गई है। फ़ारसी में, मागधी में, अवधी में या शोरसैनी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अवधी में। क्वेश्चन नंबर 84, वीर काल की तसनीफ़ कहलाती है सागर रतन की, जटायु की, रासों की या हैतोपदेश की। तो वीर काल का जो ताल्लुक़ है वो पृथ्वीराज रासो से है, पूरा नाम है इनका पृथ्वीराज रासो। ये जो है वो एक तसनीफ़ है जिसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है, चंद बरदाई। ये नाम जो है वो याद रख सकते हैं। 1-2 सवाल आपका जो है वो उस लिटरेचर से भी आ सकता है, क्योंकि हिंदी और उर्दू का ताल्लुक़ जो है वो एक ही ज़बान से मिलता है, और वो है आपका संस्कृत। आगे बढ़ते हैं, छायावाद तहरीक के 4 सुतूनों में से एक है सूरदास, तुलसीदास, राहिल शंकर तायन या निराला। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 निराला का ताल्लुक़ जो है छायावाद से है। अगला क्वेश्चन, मेरे कसीदे को देखो तशबीब के शेर बहुत पाओगे और मदह के शेर कमतर। ये बात किसके ताल्लुक़ से की गई है। तो आंसर हो जाएगा गालिब के, और जबकि सौदा में मदह के अशार जो है वो ज़्यादा मिलते हैं, गालिब में कम। अगला सवाल है, ख़बरें रसा एजेंसी के ज़रिए ख़बरें अखबारात तक पहुँची हैं टेलीविज़न के ज़रिए, टेलीप्रिंट के ज़रिए, टेलीग्राम के ज़रिए या टेलीफोन के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 87 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा टेलीप्रिंट मीडिया के ज़रिए। ऑप्शन ए 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग प्रिंट मीडिया भी कहते हैं, जो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, विकट कहानी के खालिक का नाम क्या है। आसान सवाल है, ऑप्शन 3 मोहम्मद अफजल। क्वेश्चन नंबर 89, झेल में से कौन सा नाम ख़बरें रसा एजेंसी के ज़ुमरे में नहीं आता है। राइटर, UPI, AFP ये है। तो इसमें सही बताना तो तीनों तो आते हैं, टाइम्स नहीं आता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी खबर एजेंसी कौन सी है, यानी कि न्यूज़ एजेंसी कौन सी है। तो आपने कई बार इंटरव्यू में देखा होगा, अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं तो ANI आता है, लेकिन यहाँ पे एशिया की पूछी गई है, तो एशिया की होती है PTI। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कसीदा शहर आसूब किसकी तख्लीक है। आँख मीच के आप लोग आंसर लगा सकते हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के लोकगीत किसकी तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 92 है, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन ए अजहर अली फारूकी। क्वेश्चन नंबर 93, अखबार का वो हिस्सा जिसमें अखबार की
पॉलिसी मुनक़सिम होती है वो कौन सा है? कॉलम, फीचर, सजरात या इदारिया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इदारिया। और यहीं पर आप लोग लिख सकते हैं उर्दू का जो पहला अखबार है वो किसको माना जाता है? जामे जहाँ नुमा को माना जाता है। जामे जहाँ नुमा को जो है वो माना जाता है, जो 1822 में जो है वो आया था। और कब? 27 जून के आसपास इसे जो है वो शुरू किया गया था। कहाँ से? कलकत्ता से। हालांकि बाज़ लोग इसको नहीं मानते बल्कि उर्दू दिल्ली अखबार को उर्दू का पहला अखबार मानते हैं, जो 1837 में दिल्ली से निकाला था मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मौलवी मोहम्मद बाक़िर ने। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल फीचर के ज़ुमरे में शामिल हैं इदारिया, सजरात, ख़बरें या माहौलियत पर मजमून? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। दरिया लताफ़त किसकी तसनीफ़ है? ऊपर बताया था उर्दू की पहली कवायद की तसनीफ़ मानी जाती है। इंशाअल्लाह खा इंशा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अहद हिंदी अदब में किस नाम से ताबीर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 96 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन 2 यानी कि आधुनिक काल, जिसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न पीरियड, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। लोरिया और शादी ब्याह के गीत किस सिन्फ के अदब के ज़ुमरे में आती हैं? लोक अदब, कसीदा, मसनवी या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोक अदब। और लोक अदब की जो पहलू या शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? वो होती है राजस्थान से, क्योंकि वहाँ के जो है वो लोकगीत क्या हैं? बड़े मशहूर हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कसीदा जिसमें मसाहिब ज़माने का जिक्र और शिकायत हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग हिजवा कसीदा कहते हैं, ऑप्शन 4। हिंदी का पहला बड़ा शायर किसे माना जाता है? तो यहाँ पे पूछा गया है हिंदी का पहला बड़ा शायर किसे माना जाता है? लल्लू लाल, गंगादास, रस खान या चंद बरदाई? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी जवाब देना है। यहाँ पे तुलसीदास या सूरदास होता तो हम लोग लगा सकते थे या कबीरदास, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर हो जाएगा चंद बरदाई, जिन्होंने जो है वो क्या लिखी है? पृथ्वीराज रासो लिखी है। और पृथ्वीराज रासो में किसके बारे में जिक्र है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान भी कौन से वाले? पृथ्वीराज चौहान भी तीसरे वाले, जिसमें उनकी जो है वो पानीपत की तराइन की जो है वो 2 वर्ष जिक्र किया गया है लड़ाई का, जो पहली हुई है 1191 में और दूसरी जो है वो 1192 में। पहली वाली जंग जो है वो पृथ्वीराज जीत जाते हैं, और जो दूसरी वाली है यानी कि 1192 वाली वो मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। और यहीं से जो है वो हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या होता है? राज शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं। फुलूकाल लफ्ज़ का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? ये क्वेश्चन गलत है, आप इसे जो है वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 4 है। आगे बढ़ते हैं। खालिस हिंदुस्तानी शायर होने का एजाज़ किसे हासिल है? तो यहाँ पे हिंदुस्तान की बात की गई है और सबसे पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नज़ीर अकबर आबादी ने हिंदुस्तानी ज़बान को जो फ़रोग़ दिया और उसी के हवाले से उन्होंने शायरी की। आगे बढ़ते हैं। उर्दू तनकीद के इब्तिदाई नकूश हमें मिलते हैं तारीख़ की किताबों में, सफ़रनामों में, शोराए तज़किरा में या फ़लसफ़े की किताबों में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 शोराए तज़किरा में। और हमने अभी पढ़ा था निकातो शोरा। यहीं पर एक सवाल आता है कि उर्दू ज़बान में, क्योंकि ये तो फ़ारसी ज़बान में लिखा गया है, उर्दू ज़बान में लिखा गया पहला तज़किरा कौन सा है? तो आप लोग बता सकते हैं। आंसर हो जाएगा गुलशन हिंद। ये कब लिखा गया? 1801 में। कहाँ पर लिखा गया? फोर्ट विलियम कॉलेज में। किसने लिखा? मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने लिखा। किसकी फरमाइश पर लिखा? तो जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। आगे बढ़ते हैं। अकबर इलाहाबादी की शायरी का इम्तियाज़ी वस्फ़ क्या है? ये तो कोई भी बता सकता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। तनकीद के रोशे अल्लामा शिबली नोमानी किस किस्म के तनकीद के कायल थे? उसलूबियात, मार्कसी, शाख्तियात या जमालियात? हालांकि हम लोग अल्लामा शिबली नोमानी को जानते हैं तकाबरी तनकीद के हवाले से, क्योंकि उनकी एक मशहूर किताब है जो 1907 में शाये हुई। कहाँ से? आगरा से, जिसका नाम था मवाज़ान अनीस व दबीर, जिसमें उन्होंने 14 ऐसी चीज़ें बताई हैं जो उन दोनों के दरमियान पेश की गई है, अनीस के और दबीर के। लेकिन ऑप्शन में तकाबली तनकीद नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा 4 जमालियात। आगे बढ़ते हैं। शायरी को एक शक्ल अब्ज़ किसने करार दिया है? क्वेश्चन नंबर 105 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि अफलातून करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 106, हिंदुस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट से खान बहादुर का खिताब पाने वाला शायर झेल में से कौन था? तो आंसर हो जाएगा अकबर इलाहाबादी, और उनको मिला था 1898 में जुडिशरी की तरफ से। नज़्म बंजारा नामा का मौजू क्या है? बंजारा नामा जो है वो नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दुनिया बहैसियत दार फ़ानी है, यानी कि ये दुनिया जो है वो ख़त्म होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। अकबर इलाहाबादी के एक खतूत के मकतूब इले कौन थे? ख्वाजा हसन निज़ामी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वली मोहम्मद के नाम से उर्दू का कौन सा शायर मशहूर जाना जाता है? ऑप्शन हो जाएगा 4, जिसे हम लोग नज़ीर अकबर आबादी के नाम से भी जानते हैं, जिनकी पैदाइश 1730 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नज़्म महादेव का बिया किस ज़ुमरे में आती है? कॉमेडी, ट्रेजिडी, इंशा या मकतूब? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉमेडी। क्वेश्चन नंबर 111, हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के लड़के बाप को ज़मती समझते हैं। ये किसके नज़रिए के हवाले से पेश की गई है? हाले की शायरी है, शाह नसीर की है, ऐबद ज़ानी की शायरी है, या अकबर इलाहाबादी की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अकबर इलाहाबादी की है। आगे बढ़ते हैं। उर्दू तनकीद के नज़रिया साज़ों में से एक शख्सियत झेल में है। तो उर्दू तनकीद में जब नाम आता है तो उसमें हमें अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम सबसे पहले देखने को मिलता है, लेकिन उनका ऑप्शन में नाम नहीं है, तो हम लोग आज़ाद को जो है वो मानते हैं, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। हाली ने किस किताब के ज़रिए उर्दू अदब में मगरबी तर्ज पर तनकीद की एहसास कायम की है? तो इनकी मशहूर किताब मुक़दमा शेर व शायरी, जो 2 हिस्सों पर मबनी है, जो 1893 में लिखी है, और इसका तर्ज क्या है? इब्ने खल्दून की किताब के हवाले से इसका तर्ज है। आगे बढ़ते हैं। कल्लू, बुद्धू, जुम्मन वगैरह अल्फाज का इस्तेमाल कसरत से मिलता है सौदा की शायरी में, अकबर की शायरी में, ज़ौक़ की शायरी में, या गालिब की शायरी में? क्वेश्चन नंबर 114 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 114 का, वो हो जाएगा ऑप्शन 2, अकबर इलाहाबादी की शायरी में। यहीं पर एक सवाल है आप लोगों के लिए, होमवर्क है, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के नौकर का क्या नाम है? ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अकबर इलाहाबादी की इब्तिदाई ज़रीफ़ाना रंग के नक़ूश मिलते हैं किस रिसाले में? तो आंसर हो जाएगा अवध पंच के मज़ामीन में। अदबी तनकीद की पहली किताब होने का इम्तियाज़ किसे हासिल है? तो अदबी तनकीद की जब अरस्तु की किताब बोतिका को हासिल है। क्वेश्चन नंबर 117, खाकानी हिंद का खिताब किस शायर को हासिल है? तो आंसर हो जाएगा ज़ौक़, और ये किसने दिया था? आलम सानी ने जो है वो इनको दिया था, ऑप्शन 4 हो जाएगा ज़ौक़। आगे बढ़ते हैं। नज़ीर अकबर आबादी ने किस बीमारी की हालत में दाई अजल को लब्बैक कहा था? क्वेश्चन नंबर 18 है, तो आंसर हो जाएगा 4, फालिस को। नज़ीर अकबर आबादी किस बादशाह की हुकूमत में पैदा हुए थे? क्वेश्चन नंबर 119 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मोहम्मद सासानी। क्वेश्चन नंबर 120, सौदा का मशहूर कसीदा जो घोड़े की हिजा में लिखा गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम तज़हीक़ रोज़गार है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 121, फिरदौसी ने शाहनामा किस बादशाह के अहद में मुकम्मल किया? क्वेश्चन नंबर 121 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, महमूद गज़नवी। आगे बढ़ते हैं। सर सैयद ने जेल में दी गई किस किताब की तस्हीह की थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आईन अकबरी, जो अकबर की क्या है, खुद नविस मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ा गालिब एक मशहूर की फ़ारसी लुगत क्या है? क्वेश्चन नंबर 133 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुरहान काते, जो किसके जवाब में लिखी गई है? काते बुरहान के जवाब में लिखी गई है। यहीं पर एक सवाल और आता है कि काते बुरहान के जवाब में कौन सी किताब लिखी गई है? तो आप लोग बता सकते हैं, साते बुरहान लिखी गई है। और ये किसने लिखी है? ये इस्माइल मेरठी के उस्ताद ने लिखी है, जिनका नाम था मिर्ज़ा रहीम बेग। मिर्ज़ा रहीम बेग ने गालिब के हवाले से ये बात लिखी है, और इसके जवाब में लिखी गई है, यानी कि इसके जवाब में गालिब ने लिखी है, और इसके जवाब में जो है वो मिर्ज़ा रहीम बेग ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल की पीएचडी का रिसाले का मौजू क्या था, या उनकी पीएचडी का मौजू क्या था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये इन्होंने 1907 में जो है मुकम्मल की थी, और उसके बाद 1908 में ये वापस हिंदुस्तान आ गए थे। और ये पीएचडी करने कब गए थे? 1905 में। कहाँ पर गए थे?
इंग्लिस्तान, जहाँ पर उन्होंने जर्मनी एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था म्यूनिक, वहाँ से उन्होंने जो है तालीम हासिल की थी। आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी सवाल, फ़ारसी अदब में लिसानुल गैब किस शायर का लक़ब है? रूमी, हाफिज़, अत्तार या सादी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हाफिज़। मीर की वफ़ात कब हुई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1822 में हुई, 1810 में, 1803 या 1825। तो सही आंसर हो जाएगा 1810 में मीर की क्या हुई? वफ़ात हुई। कहाँ पर? लखनऊ में। और 1803 में किसकी पैदाइश हुई है? तो आप लोग बता सकते हैं, मीर अनीस की जो है वो पैदाइश हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, रानी केतकी की कहानी का साल तसनीफ़ क्या है? रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह का इंशा की कहानी है और इसको हिंदी अदब की पहली कहानी भी माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा 1803, जिसमें जो है वो रानी केतकी की और सूरज भान की जो है वो कहानी का बयान किया गया है। अगला सवाल है, लिसानी जायज़ा हिंद किसकी तसनीफ़ है? विलियम स्मिथ की, सुनीति कुमार चटर्जी की, गैरिसन की या ज्ञानचंद जैन की? तो आंसर हो जाएगा लिसानी जायज़ा हिंद गैरिसन की क्या है? तसनीफ़ है, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, कुतुब शाही दौर का सबसे बड़ा शायर और नसर निगार कौन है? यानी कि दोनों खूबी उसमें होनी चाहिए। तो एक ही आंसर आता है, मुल्ला असदुल्ला वजी। शायरी में बात करें तो इनकी एक मसनवी है जिसका नाम है कुतुब मुस्तरी, और इसके अलावा नसर में बात करें तो सबरस। कुतुब मुस्तरी का 1609 साल है, और अगर हम लोग सबरस की बात करें तो 1635, लेकिन हिजरी पूछ लेता है तो 1018 और इसकी जो है वो 1045 इसकी है दास्तान सबरस की, और 1018 जो है वो किसकी है? कुतुब मुस्तरी यानी कि मसनवी की है। आगे बढ़ते हैं, कसीदा गज़ल के किस हिस्से से माखूज़ है? गुरेज से, दुआ से, मदह से या तशबीब से? तो गज़ल का जो कसीदा है वो किससे माखूज़ है? तशबीब से जो है वो माखूज़ है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उर्दू गज़ल की इब्तिदा किस शायर से तस्लीम की जाती है? मीर तकी मीर से, इब्न निशाती से, अमीर खुसरो से या वली तकनी से? तो आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो से, जिनको हम लोग तूतिया हिंद के नाम से जो है वो जानते हैं, और ये उर्दू गज़ल के पहले शायर माने जाते हैं। और इन्होंने ही तबला और सितार इन दोनों का जो है वो आविष्कार किया है। एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, इसलिए आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, गज़ल का बुनियादी माखज़ कौन सी ज़बान है? अरबी है, उर्दू है, फ़ारसी है या तुर्की है? तो कसीदा जो है वो अरबी में शुरू हुआ था और कसीदे से ही गज़ल निकली है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अरबी। अगला सवाल, उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है? सबरस, बागो बहार, गुले सनवर या तिलस्म ख़याल? तो आंसर हो जाएगा दास्तान सबरस जो है वो उर्दू की पहली दास्तान है, जिसके मुसन्निफ़ का नाम मुल्ला असदुल्ला वजी है। लेकिन अगर इसी सवाल में पूछता कि उर्दू की सबसे मशहूर दास्तान कौन सी है, तो आप लोग बता सकते हैं बागो बहार, जिसके मुसन्निफ़ का नाम है मीर अमन। अगला सवाल है, रदीफ़ किसे कहते हैं? काफ़िया से पहले वाले अल्फाज को, गज़ल के आखिरी शेर को, काफ़िए के बाद वाले अल्फाज को या गज़ल के पहले शेर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काफ़िए के बाद वाले अल्फाज को रदीफ़ कहते हैं। और रदीफ़ की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ये बिल्कुल सेम रहता है। आगे बढ़ते हैं, संस्कृत ज़बान के सबसे कदीम नमूने हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? उपनिषद में, पंचतंत्र में, अशोक की लाटों में या ऋग्वेद में? तो संस्कृत ज़बान के जो हमें सबसे पहले नमूने देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं ऋग्वेद में। और ऋग्वेद कितने हैं? 4, जिसमें हमारे पास आता है सबसे पहला वेद जो आता है, वेद जो है वो 4 है, जिसमें पहला है ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं, प्राकृत के सबसे कदीम नमूने कहाँ देखने को मिलते हैं? उपनिषद में, पंचतंत्रों में, अशोक की लाटों में या वेदों में या ऋग्वेद में? तो प्राकृत ज़बान जो है वो संस्कृत के बाद आई, तो इसका मतलब हो जाता है अशोक की लाटों में, यानी कि अशोक के स्तंभ में, जिसे हम लोग कहते हैं अशोक के स्तंभ में जो है वो हमें प्राकृत ज़बान के जो है वो नमूने देखने को मिलते हैं, और इसका मतलब होता है फितरी ज़बान। आगे बढ़ते हैं, आराइश महफिल किसकी दास्तान है? रतन नाथ सरशार की, लल्लू लाल जी की, हैदर बख्श हैदरी की या खलील अली खां की? तो आराइश महफिल जो है वो किसकी है? हैदर बख्श हैदरी की है। हालांकि आराइश महफिल जो है वो एक तसनीफ़ और है जिसका नाम है
میر علی افسوس، ان کی بھی تصنیف ہے، تو اس لیے آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا دونوں کی تصنیف ہے، حیدر بخش حیدری کی بھی اور میر علی افسوس کی بھی۔ ان میں سے پہلے یہ بھی آ جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے پہلے کس نے لکھی ہے، تو آنسر ہو جائے گا حیدر بخش حیدری نے۔ اگلا سوال، محمد بخش محظور کی داستان کا نام کیا ہے؟ انوار سہیلی، نو رتن، سیتا و چن، داستان امیر حمزہ، تو آنسر ہو جائے گا نو رتن جو ہے وہ تصنیف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، قصہ در قصے کی تکنیک کس صنف کا وصف خاص ہے، یعنی کہ اس کی خصوصیت ہے، تو قصہ در قصہ کس میں چلتا ہے؟ داستان میں چلتا ہے۔ اگلا سوال، شمالی مغرب ہندوستان کی زبان کیا تھی؟ اودیچا، پراچیا، سنسکرت یا پالی؟ تو شمالی اور مغرب کی زبان تھی آپشن اے اودیچا۔ آگے بڑھتے ہیں، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص رکھتا ہے یا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم لوگ مقطع کہتے ہیں، آپشن اے۔ اور غزل کے پہلے شعر کو ہم لوگ مطلع کہتے ہیں۔ غزل کی مصرع کے آخری لفظ کو ہم لوگ ردیف کہتے ہیں، اور ردیف سے پہلے آنے والے لفظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال، مغرب میں آریائی تہذیب کا اہم مرکز تھا؟ کالی بنگا، لوتھل، کاندھار یا برہمنا؟ تو مغرب میں یعنی کہ ویسٹرن میں کون تھا؟ کاندھار، آپشن 2 جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، سبرس کس کی تصنیف ہے؟ یہ اوپر بتا دیا ہے، آپشن اے ہو جائے گا ملا بھجی۔ اگلا سوال، آریائی زبان کا پہلا مستند نقش کس کتاب میں ملتا ہے؟ رگ وید میں، اوستھا میں، جاتک کتھا میں یا پنچ تنتر میں؟ تو ہند آریائی کا تعلق ہمیں رگ وید میں ملتا ہے، آپشن اے۔ اگلا سوال ہے، میر تقی میر نے دہلی سے ہجرت کر کے کس شہر میں سکونت اختیار کی؟ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ لکھنؤ میں۔ اگلا سوال، رکن کو اجزاء میں تقسیم کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جز، وزن، رکن یا بحر کہتے ہیں؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ جز کہتے ہیں۔ اگلا سوال، نکات الشعراء کیا ہے؟ نکات الشعراء میر تقی میر کا تذکرہ ہے جو انہوں نے 1751 میں لکھا تھا فارسی زبان میں۔ کہیں کہیں پر آپ کو 52 میں ملے گا جس میں 103 شعراء کا ذکر ہوگا، آپشن 4۔ اگلا سوال، میر تقی میر کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ تو یہ ہوتا لکھنؤ میں۔ اگلا سوال، ذکر میر کس کی کتاب ہے؟ میر تقی میر کی، میر سوز کی، گوپی چند نارنگ کی یا میر انیس کی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ذکر میر، میر تقی میر کی تصنیف ہے، اور یہ کیا ہے؟ ان کی خود نوشت ہے جو انہوں نے 1772 میں لکھی تھی۔ کس زبان میں؟ فارسی زبان میں لکھی تھی۔ اگلا سوال، یہ ایک شعر ہے، یہ بتانا ہے کس کا شعر ہے۔ کوشچن نمبر ہے ہمارے پاس 25، تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کھا گئی ہے، فکر پریشاں کہاں کہاں میری، یہ شعر کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، علم لسانیات کی ایک اہم شاخ کون سی ہے؟ علم صوتیات، تنقید، غزل یا تحقیق؟ تو علم لسانیات کا آپشن ہو جائے گا علم صوتیات۔ اگلا سوال، وہ حرف جن کی اپنی ایک مقررہ آواز ہوتی ہے انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں ہم لوگ ناطق کہتے ہیں، آپشن 4۔ اگلا سوال، منتخب الحکایات کس کے تصنیف ہے؟ نذیر احمد کی ہے، علی میاں ندوی کی ہے، امام احمد رضا کی ہے یا اشرف علی تھانوی کی ہے؟ کوشچن نمبر 28 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ نذیر احمد کی ہے۔ اگلا سوال، ڈپٹی نذیر احمد کی ولادت کہاں ہوئی؟ آسان سوال ہے، بجنور میں، آپشن 4۔ نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح کا سن اشاعت کیا ہے؟ تو یہاں پہ اشاعت پوچھا گیا ہے، تو 1877، لیکن یہ لکھا کب گیا تھا؟ 1874 میں۔ آگے بڑھتے ہیں، وید کتنے حرف پر مشتمل ہے؟ تو واو، الف اور یا، واو، یا اور دال 3 ہیں، تو آپشن ہو جائے گا 3۔ آگے بڑھتے ہیں، نذیر احمد کے ناولوں کا موضوع کیا ہے؟ تفریح، اصلاحی، تاریخی یا نفسیاتی؟ کوشچن نمبر 32 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، اصلاحی ہے۔ اور انہوں نے اردو ناول کا آغاز کب کیا تھا؟ 1869 میں، اور پہلا ناول لکھا تھا میرات العروش، جس میں اکبری اور اصغری جو ہے وہ مین کردار میں تھے۔ عاقل اور کامل ان کے شوہر کے نام ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، علم عروج کا معجد کون ہے؟ بڑا ہی آسان سوال ہے، آپشن ہو جائے گا اے، خلیل ابن احمد۔ آگے بڑھتے ہیں، پہلے مصرعے کے آخری رکن کو کیا کہتے ہیں؟ زحاف، فاصلہ، عروج یا صدر؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3، عروج کہتے ہیں۔ ہند یورپی کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟
आर्मेनी, सलावक, हिंद आर्याई या इंड हटाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हिंद यूरोपी को हम लोग हिंद ईरानी के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल, लिसानियात किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी, फ़ारसी, यूनानी या तुर्की। क्वेश्चन नंबर 36 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल, छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में, इसमें कौन सी इल्म बयान का अरकान है? कनाया है, मजाज मुरसिल है, तशबीह है या इस्तारा है। तो आंसर हो जाएगा इस्तारा। और ये बात किसकी हो रही है? जुगनू की। अगला सवाल है, करखंदारी उर्दू किस खत्ते में बोली जाती है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली में, और दिल्ली ऑप्शन में नहीं है तो आंसर हो जाएगा शाहजहांबाद में, ऑप्शन 3। अगला सवाल, नज़ीर अहमद के किस नावल को उर्दू का पहला नावल कहा जाता है? ये ऊपर ही बताया है आपको, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद के किस नावल में दहली के मिटते हुए घरानों की तस्वीर पेश की गई है? जनातुन नास में, रोया सादिका में, मिरातुल उरूश में या तौबतन नसू में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि तौबतन नसू में। अगला सवाल, किस यूनिवर्सिटी का ज़रिया तालीम उर्दू था? मुंबई, दहली, उस्मानिया या हैदराबाद। तो आंसर हो जाएगा दारुल तर्जुमा उस्मानिया, जो 1917 में जो है वो कायम हुई थी। आगे बढ़ते हैं, मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है? तुर्की, यूनानी, फ़ारसी या अरबी। क्वेश्चन नंबर 42, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि अरबी। आगे बढ़ते हैं, ज़बान के साइंटिफिक मुताले का क्या नाम है? उरूज, तनकीद, लिसानियात या तज़किरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि लिसानियात। आगे बढ़ते हैं, गुलजार नसीम का किस्सा का चरबा है, यानी कि उसका किस्से उसे जो है वो लिया गया है। मज़हब इश्क, फ़रेब इश्क, ज़हर इश्क या इजहार इश्क। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मज़हब इश्क। और ये जो है वो किसकी तसनीफ़ है? निहाल चंद लाहौरी की जो है वो क्या है? तसनीफ़ है। आगे बढ़ते हैं, ख्वाजा मीर दर्द का ताल्लुक़ किस सूफ़ी सिलसिले से था? नक्शबंदी, सहरवर्दी, कादरिया या चिश्तिया। तो ख्वाजा मीर दर्द का जो ताल्लुक़ है वो नक्शबंदी से था, ऑप्शन ए। अगला सवाल, तर्क इह्या गोई की तहरीक किसने शुरू की? नाजी, मजहर जाने जाना, शाह मुबारक आबरू या आतिश लखनवी। तो यहाँ पे शुरू की गई, तो आंसर हो जाएगा मजहर जाने जाना। और अहयाम के रद्द अमल में कौन सी तहरीक सामने आई? आंसर हो जाएगा इस्लाही तहरीक। और इस्लाही तहरीक का बानी कौन है? आंसर हो जाएगा इमाम बख्श नासिख। अगला सवाल, हदायकुल बलागत का किसने उर्दू में तर्जुमा किया? अल्लामा शिबली नोमानी, ताराचंद, मास्टर रामचंद या इमाम बख्श शहबाई। तो आंसर हो जाएगा इमाम बख्श शहबाई, जिनका ताल्लुक़ दहली कॉलेज से था और ये मास्टर रामचंद के क्या थे? उस्ताद थे। आगे बढ़ते हैं, गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा नुसरती। क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल, मारूख परी किस मसनवी का किरदार है? फूलबंद का, गुलजार नसीम का, शहरुल बयान का या गुलशन इश्क। तो मारूख परी जो है वो शहरुल बयान का किरदार है, जिसमें बेनज़ीर और बद्र मुनीर का किस्सा कलमबंद किया गया है। अगला सवाल है, मुल्ला वजी की मसनवी कौन सी है? अलीनामा, शाहनामा इसनाद, गुलजार नसीम या कुतुब मुस्तरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि कुतुब मुस्तरी इसका सही आंसर है मुल्ला वजी की। और ये कब लिखी गई है? 1609 में। आगे आते हैं, शहजादा बेनज़ीर का किस्सा किस मसनवी में बयान हुआ है? तो ऑप्शन 2 सहरुल बयान में। आगे बढ़ते हैं, दीवान ज़ादा किसका शेरी मजमुआ है? आबरू का, यगाना का, दाग का या शाह हातिम का। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन 4 शाह हातिम का। अगला सवाल, मसनवी कदमराव पदमराव के मुसन्निफ का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा फ़खरुद्दीन हसन निज़ामी बैदरी। क्वेश्चन नंबर 54, मामलात इश्क किसकी मसनवी है? मीर दर्द की, मीर तकी मीर की, मीर हसन की या मिर्ज़ा शौक की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मीर तकी मीर की ये मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 55, तर्जुमा करना किसी इल्लत असल तख्लीक के मालूल की एक दूसरे इल्लत तर्जुमे के तवस्सुत से इम्कान कुर्बत
صحت کے ساتھ تشکیل نوکر ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جبرالٹر کا، زیبر بلاک کا، عمر خیام کا یا پال ویلری کا؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 4 پال ویلری کا۔ اگلا سوال ہے دارالترجمہ کہاں قائم کیا گیا؟ محمد آباد، حیدرآباد، احمد آباد یا الہ آباد؟ تو دارالترجمہ عثمانیہ حیدرآباد میں قائم کیا گیا، آپشن 2۔ اگلا سوال علم الکتاب کس کی تصنیف ہے؟ میر تقی میر کی، داغ دہلوی کی، میر درد کی یا غلام حمدانی مصحفی؟ تو آنسر ہو جائے گا خواجہ میر درد کی تصنیف ہے علم الکتاب۔ آگے بڑھتے ہیں، سائنٹیفک سوسائٹی کس نے قائم کی؟ مولوی عبدالحق، علامہ شبلی نعمانی، محمد حسین آزاد یا سر سید احمد خان؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 4 سر سید احمد خان نے۔ کب کی؟ 1862 میں۔ کہاں قائم کی؟ تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں غازی پور میں۔ اور غازی پور سے علی گڑھ کب لے گئے یہ بھی آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا، ایگزام میں آ جاتا ہے۔ تو آنسر ہو جائے گا 1864 میں۔ آگے بڑھتے ہیں، توسیع لسانیات کی قسم میں زبان میں تلفظ کے ہونے والی آوازوں کے توزیع اور ان کا تجربہ کا کیا کہا جاتا ہے؟ تشکیلات، معنیات، لغت یا نحویات؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، اسے ہم لوگ تشکیلیات کے زمرے میں رکھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، انجمن ترقی اردو ادب کب قائم کی گئی؟ 1957، 1898، 1903 یا 2012؟ کوشچن نمبر 60 ہے اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 1903۔ آگے بڑھتے ہیں، کس بادشاہ کے کہنے پر غالب کو خاندان تیموریہ کی تاریخ لکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی؟ بہادر شاہ ظفر، شاہ عالم، اورنگزیب یا فروخشیار؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے بہادر شاہ ظفر۔ اگلا سوال ہے، غالب کے ابتدائی دور کا کلام کس نام سے شائع ہوا؟ کاتب برہان، اردو معلی، تیغ تیز یا نسخہ حمیدیہ؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 نسخہ حمیدیہ۔ اگلا سوال ہے، یادگار ولی کو کس نے مرتب کیا؟ مولوی عبدالحق، محمد تقی، سید محمد یا غارسہ تاسیم؟ کوشچن نمبر ہے ہمارے پاس 63 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا سید محمد کو۔ آگے بڑھتے ہیں، اردو شاعری میں ولی کا خاص میدان کیا ہے؟ غزل کا ہے، نظم کا ہے، رباعی کا ہے یا مثنوی کا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ غزل کا ہے، کیونکہ ولی کو اردو غزل کا جو ہے وہ امام کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، دیوان ولی ہندوستان کے باہر کس شہر میں شائع ہوا تھا؟ تہران میں، ماسکو میں، لندن میں یا پیرس میں؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 4 پیرس میں۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر نیکسٹ ہے، ترنگ کس کے انشائیہ کا مضامین کا مجموعہ ہے؟ رشید امجد کا، وزیر آغا کا، علامہ شبلی نعمانی کا یا سید اکبر قاصد کا؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 سید اکبر قاصد کا۔ کوشچن نمبر نیکسٹ، کلام غالب کا پہلا نقاد کون ہے؟ عبد الرحمن بجنوری، علامہ شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی یا رشید حسن خان؟ تو آنسر ہو جائے گا حالی، کیونکہ حالی نے 1897 میں سب سے پہلے غالب پر جو ہے وہ قلم اٹھایا تھا اور تصنیف لکھی تھی یادگار غالب۔ آگے بڑھتے ہیں، لوک ادب ادارہ کس ملک میں قائم کیا گیا؟ امریکہ، فرانس، فن لینڈ یا ہندوستان؟ کوشچن نمبر 68 ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 68 کا آپشن اے یعنی کہ امریکہ۔ آگے بڑھتے ہیں، عود ہندی کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ غالب کے، سر سید کے، شبلی کے یا منشی پریم چند کے؟ تو آنسر ہو جائے گا یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے عود ہندی۔ اس کے بعد کس محقق نے ولی کو گجراتی بتایا ہے؟ نصیر الدین ہاشمی، ظہور الدین مدنی، محی الدین قادری ذوق یا عبادت بریلوی؟ کوشچن نمبر 70 ہے اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ظہیر الدین مدنی، اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اگلا سوال ہے، گرمیس براڈن کا تعلق کس ملک سے تھا؟ اسپین، ناروے، روس یا جرمنی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 جرمنی سے تعلق تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، حیات سعدی لکھ کر حالی نے اردو زبان میں سوانح نگاری کا سنگ بنیاد رکھا، یہ کس کا قول ہے؟ محمد حسین آزاد کا، علامہ اقبال کا، مہدی افادی کا یا شیخ چاند قائم پوری کا؟ کوشچن نمبر 72 آنسر ہو جائے گا 4 یعنی کہ شیخ چاند قائم پوری کا۔ غالب نے اپنا روز نامچہ کس نام سے لکھا؟ دستمبو، مہر نیم امروز،
पंच अहम या काते बुरहान। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 तंबू, क्योंकि मीर नहम इमरोज जो है वो तारीखी किताब है, काते बुरहान जो है वो लुगत है, और 10 तंबू क्या है, रोज़नामचा है जो 1858 में लिखा गया था और इसका मौजू 1857 की गदर था। जिस तरीके से सर सैयद अहमद खां के असबाब बगावत हिंद है, ठीक वैसे ही गालिब का जो है वो 10 तंबू है जो फ़ारसी ज़बान में है। आगे बढ़ते हैं। मुगलिया हुकूमत ने गालिब को किस खिताब से नवाजा? आसान सवाल है, ऑप्शन 4 हो जाएगा नजमुद्दौला। आगे बढ़ते हैं। उर्दू का पहला सफ़रनामा कौन सा है? सफ़र अवध, अजाइबात फ़रंग, सफ़रनामा काबुल और तवारीख़ अजीब। क्वेश्चन नंबर 75 यानी कि 75, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अजाइबात फ़रंग। आगे बढ़ते हैं। लताइफ़ गैबी को गालिब ने किस नाम से शाये किया? शाह इस्माइल, मीर मेहदी मजरू, मिर्ज़ा तुफ्ता या दादा खां सैया। क्वेश्चन नंबर 76 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। वली औरंगाबादी किसकी किताब है? मोहम्मद वली की, नसीरुद्दीन हाशमी की, सुजाया खाविर की या इबादत बरेलवी की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये इबादत बरेलवी की तसनीफ़ है। आगे बढ़ते हैं। अपने किस दोस्त के साथ वली ने दिल्ली का सफ़र किया था? अबू रिहान, सैयद अबुल मानी, शाह नूरुद्दीन या इबादतुल मन्नान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सैयद अबुल मानी। और ये कब किया था? 1700 में। और दीवान कब पहुंचा? 19 साल बाद, 1719 में। आगे बढ़ते हैं। शख्सियतें किसके ख्वाबों का मजमू है? मंटू, बेदी, मोहम्मद तुफ़ील या कृष्ण चंद्र। तो आंसर हो जाएगा साद हसन मंटू, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। इस अदीब के रोज़नामचे में उसकी हयात में ही रिसाला में शाये होते रहे? ख्वाजा हसन निज़ामी, ख्वाजा अहमद अब्बास, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी या कन्हैया लाल कपूर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ख्वाजा हसन निज़ामी। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो किसकी तसनीफ़ है? श्रीधर की, पंडित गौरी शंकर, जजंग की या चंद बरदाई। आंसर हो जाएगा 4 चंद बरदाई की है पृथ्वीराज रासो। आगे बढ़ते हैं। कसीदे के किस जुज़ को नसीब भी कहते हैं? गुरेज को, तशबीब को, दुआ को या मदा को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि तशबीब को जो है वो नसीब भी कहते हैं और तमहीद भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है फ़र्श, बिछाना। आगे बढ़ते हैं। पद्मावत किसकी तसनीफ़ है? मलिक मोहम्मद जायसी, नूर मोहम्मद मंझन या कुतुबन। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन ए यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी। आगे बढ़ते हैं। लोक गीतों की पैदाइश के मुतालिक भाटों का नज़रिया किसने पेश किया? स्टेंटन ने, ग्रेव्स बार्डन ने, बिशप टॉम पर्सी ने या श्रीगन ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल है। जिस कसीदे में तशबीब और गुरेज के इज्जाए शामिल नहीं होते उसे क्या कहते हैं? हिजवा कसीदा, तमहीदिया कसीदा, मदहिया कसीदा या खिताबिया कसीदा। क्वेश्चन नंबर 85 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन 4 खिताबिया कसीदा। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में सबसे पहले लोक अदब की तहकीक किसने की? प्रोफेसर चाइल्ड, जेम्स डॉट, डाल्टन या J.A. भट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 86 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन 2 यानी कि जेम्स डॉट ने। अगला सवाल। जिस कसीदे में किसी की मजम्मत या बुराई बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग हिजवा कसीदा कहते हैं, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? 1900, 1945, 1959 या 1970। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1959 में टेलीविज़न की शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं। गीत ही गीत किसकी किताब है? देवेंद्र सत्यार्थी, कमर रईस, मीरा जी या अतहर अली फारूकी। तो गीत ही गीत का ताल्लुक जो है वो मीरा जी से है। यहाँ पे देवेंद्र सत्यार्थी का नाम भी याद रख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में आता है और उन्होंने भी जो है वो उर्दू अदब में जो है वो सबसे ज़्यादा क्या किए हैं? गीत लिखे हैं। और इनके बचपन का नाम अक्सर एग्जाम में आता है, तो इनके बचपन का नाम था युधिष्ठिर। आगे बढ़ते हैं। कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? फ़ारसी, लातीनी, अरबी या यूनानी।
क्वेश्चन नंबर 90 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। आगे बढ़ते हैं, लोक लफ्ज़ किस ज़बान से माखूज़ है? संस्कृत, हिंदी, पाली या उर्दू? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संस्कृत। आगे बढ़ते हैं, जामे जहानुमा कहाँ से शाये होता था? कानपुर, कलकत्ता, बम्बई या अलीगढ़? आंसर हो जाएगा कलकत्ता से, और ये 1822 से निकलना शुरू हुआ और 1827 में बंद हो गया। आगे बढ़ते हैं, लफ्ज़ कम्युनिकेशन किस ज़बान से माखूज़ है? यूनानी, लातीनी, जापानी या फ्रांसीसी? क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लातीनी। आगे बढ़ते हैं, फ़वाइदुन नाज़रीन और मुहब्बे वतन कहाँ से शाये होते थे? ये दोनों रिसाले हैं, दहली कॉलेज, अलीगढ़ कॉलेज, बनारस कॉलेज या उस्मानिया? तो ये दहली कॉलेज के क्या थे? रिसाले थे। अगला सवाल, निर्गुणवाद का सिलसिला किससे शुरू होता है? कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, गुरु नानक या तुलसीदास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कबीरदास से। आगे बढ़ते हैं, हिंदी अदब की मशहूर किताब भाग्य योग वशिष्ठ किस बोली में लिखी गई? हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन 4, यानी कि खड़ी बोली। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उर्दू सहाफ़त की पहली किताब अख्तर शहनशाही किसने तरतीब की? सैयद मोहम्मद अशरफ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलवी मोहम्मद बाक़िर या मोहम्मद हुसैन आज़ाद? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयद मोहम्मद अशरफ। आगे बढ़ते हैं, वीर गाथा काल का भाटो और दरबारी शायरों की तसनीफ़ात किस ज़बान में मिलती है? ये सवाल थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, ऑप्शन 4 हो जाएगा डोंगल। उर्दू मुअल्ला के मुदीर कौन थे? तो उर्दू मुअल्ला खुतूत का मजमूआ भी है, लेकिन ये रिसाला भी है, और ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हसद मोहानी का, जो उन्होंने 1903 में निकाला था। कहाँ से? अलीगढ़ से। और ये कब बंद हो गया था? 10 साल बाद 1913 में ये बंद हो गया था। अगला सवाल है, किसकी तालीमात में तसव्वुफ़, नात पंथों और वैदिक उसूलों का असर झलकता है? कबीरदास में, तुलसीदास में, रसखान में या स्वामी रामानंद में? क्वेश्चन नंबर 100 है, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कबीरदास में। आगे बढ़ते हैं, अकबर इलाहाबादी का सने वफ़ात क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1921 में। आगे बढ़ते हैं, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 102, आंसर हो जाएगा ए, वली मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कोई तनकीदी फैसला जमालियाती इक़दार पर नज़र रखे बगैर नहीं हो सकता, ये कौल किसका है? एलियट का, ऑस्कर वाइल्ड का, अरस्तू का या सबूरम का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, नफ्सियाती तनकीद के अलमबरदार कौन है? सिगमंड फ्राइड, क्रोचे, कार्ल मार्क्स या स्पंगारा? तो नफ्सियाती ताल्लुक़ का जो ताल्लुक़ है वो फ्राइड से है, जिसे हम लोग सिगमंड फ्राइड कहते हैं। और इनके 3 लेवल होते हैं, अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, तीनों आपको याद रखने हैं। पहला होता है शऊर, दूसरा होता है लाशऊर, और तीसरा होता है तहत शऊर। तो ये तीनों याद रख लीजिएगा, एग्ज़ाम में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़मों के ज़रिए किस पर तनकीद की है? बादशाहों पर, मशरक़ी तहज़ीब पर, गरीबों पर या मगरबी तहज़ीब पर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मगरबी तहज़ीब पर। आगे बढ़ते हैं, नज़ीर नामा किसकी तसनीफ़ है? शमसुल हक उस्मानी की, डॉक्टर अकील अहमद की, ज्ञानचंद जैन की या खान रशीद की? क्वेश्चन नंबर 106 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शमसुल हक उस्मानी की। आगे बढ़ते हैं, उर्दू तनकीद के इब्तिदाई दौर में किस तनकीदी दबिस्ता का गलबा था? नफ्सियाती का, तासुराती का, साख्तियाती का या जमालियाती का? क्वेश्चन नंबर 107 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि तासुराती का। और तासुराती का जो सबसे बड़ा शायर माना जाता है उर्दू अदब में, वो माना जाता है फिराक गोरखपुरी। आगे बढ़ते हैं, अकबर इलाहाबादी का पेशा क्या था? तो वो मुंसिफ थे, यानी कि ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तज़हीक़ रोज़गार बहुत पुराना सवाल है, सभी को पता है, ये सौदा का तज़किरा है, सौदा का कसीदा है, जो उसमें घोड़े की हिजो कही है। आगे बढ़ते हैं, उर्दू अदब में तक़ाबुली मुताले की शुरुआत किस किताब से तस्लीम की जाती है? मवाज़ान अनीस व दबीर, मुक़दमा शेर व शायरी, नसर और नज़रिए और इकबाल कामिल?
تو آنسر ہو جائے گا موازان انیس ادبی، جو 1907 میں شائع ہوئی، کہاں سے؟ آگرہ سے۔ اور اس کو شائع کرانے کا شرح کس کو جاتا ہے؟ سید بالگرامی کو جاتا ہے، جو علامہ شبلی نعمانی کے کہتے ہیں دوست تھے۔ اگلا سوال، مفلسی کس کی نظم ہے؟ نذیر اکبر آبادی کی، محمد حسین آزاد کی، اختر الایمان کی، یا تلوک چند محروم کی؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے، نذیر اکبر آبادی کی یہ نظم ہے مفلسی۔ آگے بڑھتے ہیں، نذیر اکبر آبادی کا سن ولادت کیا ہے، یعنی کہ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے، 1740 میں۔ آگے بڑھتے ہیں، اردو کا پہلا عوامی شاعر کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کو، الطاف حسین حالی کو، محمد حسین آزاد کو، یا اسماعیل میرٹھی کو؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے، نذیر اکبر آبادی کو۔ اگلا سوال ہے، کس کتاب سے صرف تنقیدی رجحانات کا ہی پتہ نہیں چلتا بلکہ اصول و تنقید پر بھی روشنی پڑتی ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 114 کا آپشن 2 بوتیکا، اور اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ارسطو ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کس شاعر کو خاقانی ہند کا خطاب سے نوازا گیا؟ تو شیخ محمد ابراہیم زو، آپشن اے۔ آگے آتے ہیں، نذیر اکبر آبادی کی پیدائش کہاں پر ہوئی؟ 1740 میں پیدائش ہوئی، تو آنسر ہو جائے گا دہلی، لیکن انہوں نے اپنا وطن ہمیشہ کس کو بتایا ہے؟ آگرہ کو بتایا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، مزاح و ظرافت کس کی شاعری کی وصف خاص ہے؟ اکبر الہ آبادی کی، جوش ملی آبادی کی، علامہ اقبال کی، یا شبلی نعمانی کی؟ تو آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 117 کا آپشن ہے اکبر الہ آبادی کی۔ آگے بڑھتے ہیں، اکبر الہ آبادی کو کس خطاب سے نوازا گیا تھا؟ تو 1898 میں ان کو خان بہادر کے خطاب سے نوازا گیا، آپشن 3۔ آگے بڑھتے ہیں، اردو تنقید کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ تو یہاں پہ اردو تنقید کی پوچھا گیا ہے، تو آنسر ہو جائے گا مقدمہ شعر و شاعری۔ اگر یہاں پہ صرف تنقید پوچھا جاتا تو آنسر ہو جاتا بوتیکا، جو انہیں ابھی اوپر دیکھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اکبر الہ آبادی کس کے شاگرد تھے؟ وحید اختر کے، وحید الدین سلیم کے، وحید الہ آبادی کے، یا شاہ مبارک آبلو کے؟ حالانکہ ان کے استاد کا نام وحید الدین سلیم ہی ہے، لیکن آپشن میں وحید الہ آبادی بھی ہے، تو آنسر ہو جائے گا وحید الہ آبادی۔ وحید الدین کے ساتھ یہاں پر جو سلیم ایڈ کیا گیا ہے وہ دوسرے ہیں، اور جو شاگرد ہیں اکبر الہ آبادی وہ وحید الہ آبادی کے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، گلستان اور بوستان کس کی تصنیف ہے؟ بڑا ہی آسان اور بڑا ہی سہل سوال ہے، شیخ سعدی کی۔ آگے بڑھتے ہیں، ابتدائی دور میں علامہ اقبال اپنا کلام کس کو دکھایا کرتے تھے؟ تو داغ دہلوی کو دکھایا کرتے تھے، آپشن 4۔ علامہ اقبال کا آخری شعری مجموعہ کون سا ہے؟ ضرب کلیم، بانگ درا، بال جبریل، یا اربغان حجاز؟ تو اس کا بانگ درا جو ہے پہلا ہے 1924 میں، یہ آپ کو پہلے سے پتہ۔ بال جبریل 1932 ہے، اس کے بعد ارمغان حجاز اور ضرب کلیم میں جو ہے وہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا پہلے آتا ہے۔ اور یہ سوال آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ ہوم ورک میں ہے کہ آپ لوگ اس سوال کا جواب مجھے ہوم ورک میں دیں، جیسے میں نے ابھی آپ سے پوچھا تھا کہ سودا کے بچپن کا نام، سودا کے نوکر کا کیا نام ہے، اور اس کا جواب آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں ملے گا۔ آگے دیکھتے ہیں، ابو الفضل معانی نے اس شاعر کے متعلق کہا تھا، عرب و عجم میں کوئی اس کا مد مقابل نہ تھا، دقیقی، ابو منصوری، رودگی، یا فردوسی؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن 3 رودگی۔ اور آج کا ہمارا آخری سوال، علامہ اقبال کی نظم نالہ فراق کس کی یاد میں لکھی گئی؟ داغ دہلوی کے، گوئٹے کے، آرنلڈ کے، یا میر حسن کے؟ تو یہ ان کے پروفیسر تھے آرنلڈ، جو کون سے سبجیکٹ کے تھے؟ فلسفے کے، تو یاد رکھ لیجیے گا فلسفے یعنی کہ فلاسفی کے، جو لاہور کالج میں، گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھاتے تھے۔ اس نظم میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کو بتانا ہے، نعت، قصیدہ، منقبت، یا حمد؟ تو اللہ کی تعریف ہم لوگ کرتے ہیں کس میں؟ حمد میں، آپشن 4 ہو جائے گا۔ یہیں پہ اللہ کی جگہ اگر نبی آ جاتا تو آنسر ہو جاتا آپشن اے، یعنی کہ نعت۔ نعت کے علاوہ صحابہ کرام آ جاتے تو اس کا ہم لوگ کہتے ہیں منقبت۔ اور انسان جب خود کے لیے دعا کرتا ہے یا خود کی تعریف کرتا ہے یا خود کی حاجت کے لیے خدا سے دعا مانگتا ہے تو اسے ہم لوگ مناجات کہتے ہیں۔ تو یہ چاروں چیزیں جو ہے وہ آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈپٹی نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ناول سے، افسانہ سے، خاکہ سے، یا سوانے سے؟ تو
तो डिप्टी नज़ीर अहमद का जो ताल्लुक़ है वो नावल से है, जो अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर असर ये सिंध जो है वो उर्दू अदब में आई और इसका आगाज़ हुआ 1869 में, क्योंकि जब डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपना पहला नावल लिखा जिसका नाम था मिरातुल उरूस। आइए आगे बढ़ते हैं। अहमद जमाल पाशा का ख़ास अदबी मैदान क्या है? तनकीद, शायर, तहकीक या तंज़ो ज़राफ़त? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उनका ताल्लुक़ जो है वो तंज़ो ज़राफ़त से है। आगे बढ़ते हैं। जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को? तो जन्नत से किसे निकाला गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हज़रत आदम को, जिनको पहला नबी माना जाता है। अगला सवाल है, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है? फ़रहतुल्लाह बेग, मौलवी अब्दुल हक, मौलवी ज़काउल्लाह या मौलवी अब्दुल समद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उर्दू का जो पहला खाका निगार है वो है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, और इन्होंने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला खाका लिखा था, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, जो उन्होंने 1927 में लिखा था। इसके अलावा मौलवी अब्दुल हक भी जो है एक खाका निगार है। इनके बहुत अहम खाके जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और उसी में से जो है एक और मशहूर है जिसका नाम है चंद हम असर। और ये सवाल आता है कि इसमें कितने खाके हैं, तो आप लोग बता सकते हैं 14 खाके हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात कब हुई? आसान सवाल है, तो 1938 लाहौर में हुई। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निशान औकाफ में वक्फ़ा का क्या मतलब होता है? मुख्तसर ठहराव, तवील ठहराव, राब्ता या ख़ात्मा? तो आंसर हो जाएगा तवील ठहराव। आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? मुअन्नस का मतलब होता है कि वो स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आता है। आपने पढ़ा होगा लिंग बदलो, तो उसी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, जिसे हम लोग उर्दू में मुज़क्कर और मुअन्नस कहते हैं। तो इसमें 3 मुज़क्कर है और 1 मुअन्नस है, उसी की आपको पहचान करनी है। कुतुब खाना बड़ा है, ये मुज़क्कर है। खुशबू अच्छी है, ये मुअन्नस है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि खुशबू इसमें मुअन्नस है। आगे बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल ने फ़ारसी, अरबी और दीनी उलूम की तालीम किससे हासिल की? मीर हसन से, सौदा से, फ़ानी से या फैज़ अहमद फैज़ से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर हसन से। यह मीर हसन वो नहीं है जिनकी मसनवी सहरुल बयान है, ये अलग है, और ये वाले मीर हसन जो है वो अलग है। आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? आगरा में, दिल्ली में, रामपुर में या सियालकोट में? तो आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब जो है वो आगरा में पैदा हुए। कब हुए यह भी आप लोग लिख लीजिएगा, 1797 में, 1797 में। और ये दिल्ली आ गए थे कब? 1811 या 1812 में, क्योंकि इनकी शादी दिल्ली में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई? इसमें कौन सी सनत है? तजाद है, तलमी है, तालील है या मनाजिर है? क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि तलमी है, क्योंकि इसमें ईसा अलैहिस्सलाम की माँ यानी कि इब्ने मरियम का नाम आया हुआ है। किसी भी नबी की ताल्लुक़ से या किसी नबी की चीज़ से या नबी की कोई किस्से से अगर कोई शेर होता है तो उसमें 100% क्या होती है? तलमी होती है। आगे बढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद के पहला अफसाने मजमूए का नाम बताइए। प्रेम पच्चीसी, आखिरी तोहफा, वारदात या सोज़े वतन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सोज़े वतन। और सोज़े वतन जो है वो कब शाये हुआ था? 1907 में, और इसे ही जो है वो बरतानी हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया था 1908 में। और इसमें कितने अफसाने शामिल हैं? तो सीन, वाव, ज़ा, वाव, ता और नून। तो इसमें आप लोग देखेंगे इसमें 6 हर्फ जो है वो आए हुए हैं। वाव 2 बार आया है, तो इसलिए इसे हम लोग 1 बार काउंट कर लेते हैं, तो यानी कि टोटल हुए 5। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं कि सोज़े वतन में कितने अफसाने शामिल हैं? 5। और उनका पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो है वो इसी में शामिल है, तो आप लोग ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। और यहीं पर इसी के साथ साथ ये पहला हुआ। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि आखिरी कौन सा है? तो आखिरी वारदात है, 1936 में मुकम्मल हुआ, 1938 में वो शाये हुआ, और इसमें 13 जो है वो क्या है? अफसाने शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। रिसाला असबाब बगावत हिंद का मकसद क्या था? तो इसका मतलब था मुसलमानों के मुताल्लिक अंग्रेज़ों की गलत फहमी को दूर करना, और ये 1858 में शाये हुआ था, जो 1857 की गदर हुई थी उसके मुताल्लिक सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। अगला सवाल है, गुलशन हिंद क्या है? कसीदा, मसनवी, मरसिया या नज़्म?
تو یہ مثنوی ہے نصرتی کی۔ آگے بڑھتے ہیں، زہر عشق جو مثنوی ہے شوق لکھنوی کی، وہ پہلی مثنوی ہے جو مافوق الفطر عناصر سے کیا ہے پاک ہے، تو آپشن 2 ہو جائے گا۔ اس کا ایک کردار ہے مہذبی، موسٹ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھ سکتے ہیں، اور اس کے باپ کیا تھا سوداگری کرتا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال، بھارت رتن کیا ہے؟ کنیت ہے، لقب ہے، عرفیت ہے یا خطاب ہے؟ تو آپ نے اگر پڑھا ہوگا اس میں عام کی اور اس میں خاص کی قسموں میں ہوتا ہے، تو یہ جو ہے وہ بھارت رتن اس میں خاص کی کیٹیگری میں آتا ہے، اور اس میں خاص کے جو ہے وہ 5 ارکان ہوتے ہیں، جو غنیت ہوتی ہے، لقب ہوتی ہے، عرفیت ہوتی ہے اور خطاب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے تخلص۔ یہ 5 جو ہیں وہ کیا ہیں، اس میں خاص کی اقسام ہے جسے ہم لوگ اس میں معرفہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو اس میں پوچھا گیا ہے کہ بھارت رتن کیا ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن 4۔ بھارت رتن جو ہے وہ خطاب ہے، جو اردو ادب میں سب سے پہلے کس کو ملا تھا؟ مولانا ابوالکلام آزاد کو ملا تھا۔ کب ملا تھا؟ 1992 میں، اور ان کی وفات ہوئی تھی 1958 میں وفات ہوئی تھی، اور 1992 میں اردو کا پہلا خطاب بھارت رتن جو ہے وہ ابھی تک صرف ایک ہی انسان کو ملا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کو، جن کو ہم لوگ ایجوکیشن منسٹر مانتے ہیں اپنے ملک کا پہلا، اور انہی کی یوم پیدائش پر ہم لوگ ایجوکیشن ڈے مناتے ہیں 11 نومبر کو، ایجوکیشن ڈے یعنی کہ شکشا دیوس جو ہے وہ ہم لوگ 11 نومبر کو مناتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، دائم کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا مطلب ہو جائے گا کوشچن نمبر 17 کا آپشن اے یعنی کہ ہمیشہ۔ آگے بڑھتے ہیں، انشائیہ کیا ہے؟ ناول ہے، مضمون ہے، افسانہ ہے یا داستان ہے؟ تو انشائیہ مضمون ہوتا ہے، آپشن 2۔ غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، میں غالب کیا ہے؟ تو یہ پھر سے قواعد کا سوال آ گیا ہے، لقب ہے، تخلص ہے، خطاب ہے یا کنیت ہے؟ تو نہ تو کنیت ہے، نہ خطاب ہے اور نہ ہی لقب ہے۔ غالب جو یہاں پر کس کا استعمال ہوا ہے؟ تخلص کا، آپشن اے 2 جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، شاعر رومان کس کو کہا جاتا ہے؟ تو آپشن ہو جائے گا 4، اختر شیرانی کو جو ہے وہ شاعر رومان کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، باغ و بہار کیا ہے؟ خاکہ ہے، ناول ہے، داستان ہے یا انشائیہ ہے؟ تو باغ و بہار کیا ہے؟ داستان ہے، جو میر امن کی لکھی گئی ہے۔ 1801 میں لکھنا شروع کیا، 1802 میں مکمل ہوئی، 1803 میں شائع ہونی شروع ہوئی اور 1804 میں یہ مکمل شائع ہوئی۔ آگے بڑھتے ہیں، باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں؟ تو درویشوں کی بات کی جاتی ہے تو آنسر ہو جاتا ہے 4، لیکن اگر پوچھا جاتا ہے کہ باغ و بہار میں کتنے قصے ہیں تو آنسر ہو جاتا 5، کیونکہ ایک آزاد بخت کا بھی قصہ ہے۔ اور اسی میں ایک سوال اور آتا ہے کہ کون سے درویش کا قصہ سب سے طویل ہے اور کون سے درویش کا جو ہے وہ سب سے مختصر ہے؟ تو پہلے درویش کا سب سے طویل ہے اور سب سے چوتھے کا جو ہے وہ سب سے کم ہے، لیکن اگر پوچھا جائے کہ 5 قصوں میں سب سے زیادہ کس کا ہے تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں آزاد بخت کا، اور آزاد بخت میں بھی کس کا؟ خواجہ سک پرست کا۔ سک کا معنی ہوتا کتا اور پرست معنی ہوتا پوجنے والا، اس لیے خواجہ سک پرست جو ہے وہ کتے کی پوجا کرتا تھا باغ و بہار میں۔ آگے بڑھتے ہیں، انسان کے اندر ڈیس کا احساس سب سے زیادہ قوی ہے؟ نفرت کا، غم کا، حسن کا یا حسد کا؟ کوشچن نمبر ہے ہمارے پاس 23 اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ حسن کا۔ آگے بڑھتے ہیں، میر امن کا تخلص کیا ہے؟ بہت ایزی سوال ہے، آپشن ہو جائے گا 4 یعنی کہ لطف، ان کا جو ہے وہ تخلص ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اردو کا پہلا اخبار کس نے جاری کیا؟ مولوی محمد باقر، حیات اللہ انصاری، ظفر ایلیا یا مولانا ابوالکلام آزاد؟ تو اردو کا پہلا اخبار کس نے جاری کیا؟ تو آپشن میں اگر کلکتے والے آتے جن کا نام سکھ دیو راؤ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے ساتھی اور تھے ان کا نام آتا تو ان کا لگاتے، لیکن آپشن میں نہیں ہے، تو اکارڈنگ ٹو آپشن فرسٹ ہو جائے گا مولوی محمد باقر، اور انہوں نے 1836 میں اردو کا پہلا اخبار نکالا دہلی اردو اخبار کے نام سے۔ اور یہ کس کے والد تھے؟ یہ محمد حسین آزاد کے والد تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، نشے کی پہلی طرح کس کا افسانہ ہے؟ سہیل عظیم آبادی، سجاد حیدر یلدرم، علی عباس حسینی یا کرشن چندر؟ کوشچن نمبر 26 ہے اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا سجاد حیدر یلدرم، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پہلے رجسٹرار تھے 1920 میں، اور انہی کی بیٹی تھی قرۃ العین حیدر، اور وہیں پر علی گڑھ میں ہی ان کی پیدائش ہوئی تھی 1926 یا 1927 میں، اور انتقال ہوا 2007 نوئیڈا میں۔
آگے بڑھتے ہیں. درج ذیل میں سے اسم نکرہ یعنی اسم عام کون سی ہے، یعنی کہ کامن ناؤن کون سی کہلاتی ہے؟ تاج محل، لال قلعہ، شہر یا گول گھر. تو تاج محل بھی دنیا میں ایک چیز ہے تو یہ اسم عام نہیں بلکہ یہ اسم خاص ہے. لال قلعہ بھی ایک ہے تو یہ بھی کیا ہے، اسم خاص ہے. شہر بہت سارے ہو جاتے ہیں تو آپشن 3 ہو جائے گا، یعنی کہ شہر اسم عام ہے. آگے بڑھتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام میں کیا نسبت ہے؟ بھائی کی، رشتہ دار کی، استاد و شاگرد کی یا باپ بیٹے کی. کوشچن نمبر 28 ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ باپ بیٹے کی. اگلا سوال، مدح کے معنی کیا ہیں؟ تعریف کے، تنقید کے، شکایت کے یا بخالت کے. تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ تعریف کے. کسی شخص کی تحریر، تصویر کو کیا کہتے ہیں؟ سوانح نگاری، خاکہ نگاری، انشائیہ نگاری یا افسانہ. کوشچن نمبر 30 ہے اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ خاکہ نگاری. اور اردو میں خاکہ نگاری کس کو بانی مانا جاتا ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. مٹی کا تیل کس کا مضمون ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے، خواجہ حسن نظامی. یہیں پر مٹی کا تیل کس میں جلتا ہے؟ تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں سر لالٹین میں. تو لالٹین بھی انشائیہ کس کا ہے؟ خواجہ حسن نظامی کا. لالٹین کو جلانے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیا سلائی کی. تو دیا سلائی بھی کس کا مضمون ہے؟ خواجہ حسن نظامی کا. اور جلانے کے لیے جب ہم لوگ لالٹین کا استعمال کرتے ہیں دیا سلائی سے، اور دیا سلائی جب رات کو جلتی ہے، لالٹین جلتی ہے تو اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ مکھی مچھر آ جاتے ہیں. تو مکھی اور مچھر، ٹھیک ہے. اور یہ بھی کس کے؟ خواجہ حسن نظامی کے. اور جب مکھی مچھر آتے ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ جنازہ بھی اٹھتا ہے. تو آپ نے پڑھا ہوگا مچھر کا جنازہ بھی ایک مضمون ہے، وہ بھی کس کا ہے؟ خواجہ حسن نظامی کا ہے. اور جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو جیوت رکھنے کے لیے ہم لوگ برف میں اسے رکھتے ہیں کافی دیر تک. تو برف بھی کس کا ہے؟ خواجہ حسن نظامی کا جو ہے کیا ہے؟ انشائیہ ہے. تو اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ ان کے یاد رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اینٹ سے اینٹ بھی کس کا ہے؟ خواجہ حسن نظامی کا ہی انشائیہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. تشبیب کس صنف شاعری کا حصہ ہے؟ تو یہ قصیدے کا ہے. آپشن 3 کریکٹ ہو جائے گا. اردو میں ناول لفظ کس زبان سے آیا؟ برطانوی سے، فرانسیسی سے، جرمنی سے یا اطالوی سے. کوشچن نمبر 33 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ اطالوی سے. کوشچن نمبر 34، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. کوشچن نمبر 34 ہے اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 34 کا وہ ہو جائے گا آپشن اے، یہ داغ دہلوی کا شعر ہے. نظم کے لفظی معنی کیا ہیں؟ آسان سوال ہے. آپشن 4 پیرونا. فسانہ آزاد کس کی تصنیف ہے؟ غلام حمد، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ، ڈاکٹر عبادت بریلوی، سر سید احمد کا یا رتن ناتھ شرشار. تو آنسر ہو جائے گا آپشن 4، رتن ناتھ شرشار کی یہ تصنیف ہے فسانہ آزاد. تشبیہ کس زبان کے لفظ ہیں؟ ایزی ہے. آپشن 4 عربی کا. آگے بڑھتے ہیں. کس چیز کو کسی خاص مشابہت کی بنا پر کسی دوسری چیز کے مانند قرار دینا ڈیش کہلاتا ہے؟ تشبیہ، استعارہ، کنایہ یا مجاز مرسل. تو آنسر ہو جاتا ہے آپشن اے، یعنی کہ تشبیہ. اور تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں. تشبیہ کے 5 ارکان ہیں. استعارہ کے کتنے ارکان ہیں؟ 3. کنایہ کے کتنے ہیں؟ 6. اور مجاز مرسل کے کتنے ہیں؟ 24. تو اس طریقے سے آپ لوگ ان سب کے ارکان بھی یاد رکھ سکتے ہیں. اور یہ چاروں کس کے ہیں؟ تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل، یہ ہیں علم بیان کے. تو علم بیان کے کتنے ارکان ہیں؟ 4. تو یہ بھی آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. مغلیہ حکومت کے آخری بادشاہ کا نام بتائیے. بہادر شاہ ظفر. آپشن اے. سائنٹیفک سوسائٹی کس نے قائم کی؟ سر سید احمد خانہ کی، غازی پور میں 1862 میں. عجائب القصص کس کی تصنیف ہے؟ عام انسان کی، شاہ عالم ثانی کی، غالب کی یا الطاف حسین حالے کی. تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یہ شاہ عالم ثانی کی تصنیف ہے عجائب القصص، جس کا تعلق مثنوی سے ہے. اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ ترکی، فارسی، ہندی یا انگریزی. آپشن اے ترکی. علامہ اقبال کی مزار کس شہر میں ہے؟ تو جہاں پر وفات ہوئی تھی لاہور میں 1938. آپشن 2. ملک الشعراء کا خطاب کسے عطا ہوا؟ ذوق کو، اقبال کو، غالب کو یا حالی کو. تو آنسر ہو جائے گا ذوق. حالانکہ غالب کو بھی ملا ہے لیکن پہلے جو ہے وہ ذوق کو ملا ہے. اور کس نے دیا تھا تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں، یہ بہادر محمد شاہ جو تھے، اکبر عالم ثانی نے، معاف کیجیے گا، اکبر شاہ ثانی نے جو ہے وہ دیا تھا. اکبر
शाह सानी ने दिया था, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और गालिब को किसने दिया था? बहादुर शाह जफर ने, ज़ौक़ के बाद। आगे बढ़ते हैं, अमीर खुसरो किस सूफी के मुरीद थे? तो इसमें ज़्यादातर आंसर जो है वो निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आना था, लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो लेकिन हमें आंसर जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देना होता है। तो वो उनके मेन मुरीद थे, लेकिन उनके अलावा नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी भी जो है वो अमीर खुसरो से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। रिसाला आजकल के मुदीर कौन है? जो दिल्ली से निकलता था सरकारी रिसाला, जिसका आंसर हो जाएगा जोश मलिहाबादी। और ये उन्होंने 1942 में जो है वो इसको जो है वो अलग हो गए थे, और उन्होंने अपना एक और रिसाला निकाला था जिसका नाम था कलीम जो है वो उनका रिसाला था, जोश मलिहाबादी का। आगे बढ़ते, किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे क्या कहते हैं? किसी ख़ास मौजू पर जहाँ हम लोग कोई तहरीर करते हैं तो उसे हम लोग मजमून कहते हैं। ऑप्शन 3 47 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द हैं? सर सैयद अहमद खां के, शिबली नुमानी के, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के, या अल्ताफ़ हुसैन हाली के? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अल्लामा शिबली नुमानी के। और इन्होंने ही अपने उस्ताद की एक किताब थी जिसका नाम था सीरतुन नबी, उसे जो है वो क्या किया था? मुकम्मल किया था। आगे बढ़ते हैं, कसीदा बाबुल जन्नत का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा। ताज़ा हवा में हवा क्या है? ये भी ग्रामर का सवाल है, यानी कि कवायद के हवाले से सवाल है। मौसूफ है, सिफत है, फ़ेल है, या ज़मीर है? क्वेश्चन नंबर 50 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये मौसूफ है। सिफत क्या है? तो इसमें ताज़ा है, फ़ेल और ज़मीर जो है वो इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सज्जाद हैदर यलदरब किस ज़बान के माहिर थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि तुर्की। इनका एक मजमून है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, बहुत ही क्या है, मशहूर भी है। अगला सवाल है, करबल कथा का मौजू क्या है? इंद्र सभा, रामायण, वाक़यात करबला, या इश्किया शायरी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वाक़यात करबला। रामायण के मुसन्निफ का नाम आप लोग जो है वो लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में जो है वो आता भी है और पूछा भी जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं वाल्मीकि। आगे बढ़ते हैं, उर्दू की पहली नसरी किताब कौन सी है? तो नसर में जब भी हम लोग बात करते हैं तो सबरस की करते हैं, जो 1635 में लिखी गई। अगर हिजरी पूछी जाए तो आप लोग 1045 बता सकते हैं। अल्लामा इकबाल किस सिम से ताल्लुक़ रखते हैं? नज़म से, ऑप्शन 2 हो जाएगा। मिसरों का वो मजमूआ जिसमें मानवी राब्त और फ़िक्री तसलसल पाया जाए उसे क्या कहते हैं? नज़्म, गज़ल, मरसिया, या मसनवी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नज़्म, क्योंकि यहाँ पर तसलसल पाया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। शेर कहने वाला क्या कहलाता है? शायर, मुसन्निफ, दर्जी, या उस्ताद? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शायर कहलाता है। अमीर खुसरो को हिंदी वाले अपना समझते हैं, हमदम, कवि, साथी, या मददगार? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उनको वो कवि मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? मीर तकी मीर की, मुल्ला वजह की, हाली की, या सर सैयद की? तो यादगार गालिब जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है, जो उन्होंने 1897 में लिखी थी, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। मीर तकी मीर कब और कहाँ पैदा हुए? मीर तकी मीर 1722 आगरा में पैदा हुए, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, परिंदे की फरियाद किसकी नज़म है? गालिब की है, मीर की है, इकबाल की है, या अल्ताफ़ हुसैन हाली की है? तो परिंदे की फरियाद ऑप्शन 3 हो जाएगा, अल्लामा इकबाल की। ऐसे गज़ल जिसके अशआर बाहम मरबूत हों क्या कहलाती हैं? गज़लिया, आज़ाद गज़ल, मुसलसल गज़ल, या जदीद गज़ल? क्वेश्चन नंबर 61 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि वो मुसलसल गज़ल जो है वो कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, उर्दू ने अपने आगाज़ और इर्तिका का बाकायदा सफ़र कब शुरू किया? तो यानी कि 13वीं सदी में शुरू किया, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उर्दू की लिसानी तश्कील में किस बोली की बुनियादी हैसियत हासिल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि खड़ी बोली, क्योंकि खड़ी बोली से ही उर्दू का जो है वो आगाज़ हुआ है। अगला सवाल है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया को मरकज़ी यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला? तो यहाँ पे मरकज़ी का पूछा गया है कि यूनिवर्सिटी को दर्जा कब मिला। हालांकि वो कायम कब हुई? 1920 में, लेकिन दर्जा कब मिला गया, ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 64, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1988 में। अगला सवाल, उर्दू ज़बान के मायने क्या हैं? तो लश्कर के हैं, ऑप्शन 2।
फोर्ट विलियम कॉलेज का इफ्तिताह कब हुआ, यानी कि उसका आगाज़ कब हुआ? 1800 में हुआ और 1800 में 4 मई को हुआ। क्वेश्चन नंबर 67, किस सिंफ में माफूकुल फितरत अनासिर की कारफाई होती है? क्वेश्चन नंबर 67 है नावल में, अफसाना, दास्तान, नावल। ये ऑप्शन 3 जो है वो थोड़ा सा गलत टाइप हो गया था, तो इसे छोड़ सकते हैं। तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि दास्तान में। तजाद लफ्ज़ किसे कहते हैं? हम मायने अल्फाज को, उल्टे मायने अल्फाज को, मुज़क्कर अल्फाज को, या खूबी बताने वाले अल्फाज को। तो तजाद का मतलब होता है उल्टे मायने बताने वाले को। तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकबर इलाहाबादी की लिखी हुई नज़्म है किरण कपूर, किस्सा चाह दरवेज़, रामायण या बरके कलीसा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि बरके कलीसा जो है वो अकबर इलाहाबादी की नज़्म है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ये एक इक्तिबास है। इस इक्तिबास से जो है वो कुछ सवाल दिए गए हैं, वो आपको पढ़ने हैं। पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उम्मीद है कि इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं। कुदरत ने कायनात के हर शे को एक ख़ास मखसूस मिकदार और तनासुब में रखा है, लेकिन इंसान ने अपनी ज़रूरियात, ऐश व इशरत और ख्वाहिशात, नफ्सियात की तस्कीन के लिए इस कुदरती निज़ाम के तवाज़ुन को ख़राब कर दिया है, जिसके नताइज में वक्तन फ़वक्तन सैलाब, ज़लज़ला, तूफ़ान शदीद गर्मी, मुख्तलिफ़ इमराज़ व दबा की शक्ल में इंसान को ही भुगतना पड़ता है। नतीजतन इंसान को बलागत और बर्बादी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें तमाम कुदरती वसाइल का इस्तेमाल माहौल को नुकसान पहुँचाए बगैर करना चाहिए। माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए और आवाम में बेदारी लाने के लिए हर साल 5 जून को बैनुल अक़वामी यौम माहौलियत मनाया जाता है, यानी कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसमें पहला सवाल है कि कब मनाया जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं 5 जून को। अगला सवाल है, कुदरती तवाज़ुन बिगड़ने से इंसान को क्या भुगतना पड़ता है? घर में रहना होता है, ज़लज़ला, सैलाब व तूफ़ान, या ये सभी? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन 4, ये सभी इसके ऑप्शन क्या हैं, दुरुस्त हैं। आगे बढ़ते हैं। कहाँ मैं ना पहचान कर मेरी जान, ये एक शेर है, आपको बताना है। पूरी एक नज़म है, तो इसमें जो है वो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि ये अल्लामा इकबाल की नज़म है। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई थी? 1877, ऑप्शन ए। मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान इश्किया दास्तान है, रोमानी नावल है, ज़िंदगी के हालात पर मबनी है, या शहीदों का मातम है? तो ये इश्किया दास्तान है, जिसमें शहजादा बेनज़ीर और बद्र मुनीर का क्या है, किरदार है। शायर मशरिक़ किसे कहा जाता है? अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। अब्दुल हलीम शरर ने कौन सा रिसाला निकाला? ऑप्शन ए, दिलगुदाज़ निकाला। कहाँ से निकाला? तो आप लोग बता सकते हैं कि ये लखनऊ से निकाला था। जिसमें सफ़र के रुदाद या हालात बयान किए जाते हैं, उसे हम लोग सफ़रनामा कहते हैं। अहमद जमाल पाशा के तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ क्या है? ज़राफ़त व तनकीद, ऑप्शन 3 हो जाएगा। खून सफ़ेद किसका अफसाना है? कृष्ण चंद्र का, मुंशी प्रेमचंद का, साद हसन मंटो का, या इस्मत चुगताई का? तो ये खून सफ़ेद मुंशी प्रेमचंद का है, अफसाना है। अगला सवाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किसके ताउन से अंजुमन पंजाब कायम की? लॉर्ड मैकाले, कर्नल हार्लाइट, मोहम्मद अली बाकर, या जॉन गिलक्रिस्ट? तो आंसर हो जाएगा कर्नल हार्लाइट। और कर्नल हार्लाइट ने ये किसे दिया था? डब्ल्यू लाइटर को दिया था। DW लाइटर को इसकी जिम्मेदारी दी थी, जो उस वक़्त गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के क्या थे, प्रिंसिपल थे। और 1874 में जो है वो इसका पहला इजलास हुआ था। टोटल कितने इजलास हुए थे? 10, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली ने शिरकत की थी 6 इजलासों में। और इसमें जो है वो बरखरूद जो है वो उन्होंने इसी के इजलास में पढ़ी थी, अंजुमन पंजाब लाहौर के इजलास में। आगे बढ़ते हैं। मीर तकी मीर ने उर्दू शायरों का तज़किरा किस में किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, निगातो शोरा में। गालिब के अशआर के मजमू का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दीवाना गालिब, जिसको मुरतब किया है इम्तियाज़ अली खां अरशी ने। आगे बढ़ते हैं। अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो अकबर इलाहाबादी की वफ़ात हुई 1921 में। अब 1921 3 ऑप्शंस में है, लेकिन आगरा, मुंबई और इलाहाबाद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि इलाहाबाद में। आगे बढ़ते हैं। ये शेर आपको बताना है किसका है। दुनिया अजब बाज़ार है, कुछ जिन्स यहाँ के साथ ले,
नेकी का बदला नेकी है, बद से बदी की बात है। तो ये नज़्म है नेकी और बदी, नज़ीर अकबर आबादी की, उसी से ये अशार लिया गया है। खुदाए शुक्र मीर तकी मीर को कहा जाता है। कौन सी किताब फ़ारसी शायरी से मुताल्लिक़ है? शेरुल अजम, तर्जुमुल कुरान, तौबतन नसूह या फिर दो से बरी? तो फ़ारसी शायरी या फ़ारसी की तारीख़ में किसको बात की गई है? शेरुल अजम। और ये जो है वो अल्लामा शिबली नोमानी की तसनीफ़ है और इसको जो है वो 5 हिस्सों में जो है वो क्या किया गया है, तकसीम किया गया है। आगे बढ़ते हैं। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक कहाँ से निकलता था या कहाँ से शाये होता था? बनारस से 1870 में निकलना शुरू हुआ, जिसके मुदीर का नाम था सर सैयद अहमद ख़ान। आगे बढ़ते हैं। कॉमरेड किसका अखबार है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, मौलाना शिबली या हसरत महानी? तो आंसर हो जाएगा ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर का अखबार है। कॉमरेड के अलावा एक और रिसाला हमदर्द, ये भी किसका है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर का है। किस सिन्फ में ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है? दास्तान में, मसनवी में, 12 मासा में या अफसाना में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अफसाना में, जिसको एक नशिस्त सिन्फ भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वासवक्त के मुअज्जिद या बानी कौन है? ख्वाजा हैदर अली आतिश, मोहम्मद शिराजी, मीर तकी मीर या मौलाना शौकत अली? तो आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर। और ये बात किसने कही है? ये बात मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कही है। किस में कही है? अपनी किताब आब हयात में कही है। और आब हयात 1880 में शाये हुई। कौन से बाब में कही है? तो आप लोग बता सकते हैं 3रे बाब में कही है, क्योंकि मीर तकी मीर का जिक्र 3रे बाब में है। वो अफ़ाइल जो इल्म उरूज़ में बुनियादी हैसियत रखते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सालिब कहते हैं। मल्लिका विक्टोरिया का मरसिया के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो है वो 5 शख्सी मरसी लिखे हैं, जिसमें मल्लिका विक्टोरिया का भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। सानेट में कितने मिसरे होते हैं? 14, 15, 19 या 12? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14। दक्कन से उर्दू इब्तिदा का नज़रिया किसने पेश किया? नसीरुद्दीन हाशमी, ऑप्शन 3। मशरक़ी हिंद की ख़ास बोलियाँ कितनी हैं? तो मगरबी हिंद की बोलियाँ 5 हैं और इन 5 बोलियों में पहले आती है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा के बाद खड़ी बोली, खड़ी बोली के बाद हरियाणवी, हरियाणवी के बाद कन्नौजी और कन्नौजी के बाद बुंदेली, ये आते हैं, जिसमें खड़ी बोलियों को हम लोग बांगड़ों के नाम से भी जानते हैं और जाटू भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आब हयात कितने अबवाब में तकसीम किया गया है? ऊपर आपको बताया था 5, ऑप्शन 3। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर किताब आब हयात है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। उर्दू की इब्तिदा कहाँ हुई? तुर्की में, अरब में, शुमाली हिंद में या यूनान में? तो उर्दू जो है वो हिंदुस्तान की पहचान है, तो ये शुमाली हिंद में पैदा हुई। कब हुई? ऊपर हमने भी बताया था 13वीं सदी के आसपास इसका जो है वो क्या होता है? आगाज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। उर्दू अदब में अहयाम गोई की तहरीक कितने अरसे तक जारी रही? तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन ए 25 साल। और अहयाम गोई के रद्द अमल में किसने काम शुरू किया? तो आप लोग बता सकते हैं नासिक ने, और शुरू की इस्लाही तहरीक। ठीक है, इस्लाही तहरीक के बानी किसको माना जाता है? नासिक को। लेकिन एक सवाल यह आता है कि अहयाम गोई के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई? तो आप लोग बता सकते हैं मिर्ज़ा मजहर जाना ने। क्वेश्चन नंबर 100, ख्वाजा हैदर अली आतिश कब पैदा हुए? क्वेश्चन नंबर 100 है, ऑप्शन 2 हो जाएगा 1778, जिनको दबिस्तान लखनऊ का बाकायदा बानी माना जाता है। दक्कन में उर्दू किसकी किताब है? नसीरुद्दीन हाशमी। मीर तकी मीर की लिखी हुई आप बीती का नाम क्या है? यानी कि उनके खुद नविस्त का नाम क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा ज़िक्र मीर, जो उन्होंने फ़ारसी ज़बान में लिखी है 1772 में। खड़ी बोली में किन किन बोलियों की आमेजिश पाई जाती है? पंजाबी, ब्रज भाषा, हरियाणवी या ये सभी? तो खड़ी बोली के ताल्लुक जो है वो मंदर झील में से क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, यानी कि ये सभी। सिराज औरंगाबादी के कुलियात का नाम क्या है? तो कुलियात सिराज जहाँ आपको दिखाई दे रहा है, आंसर वही हो जाएगा ऑप्शन 3। भारत का पहला अंग्रेज़ी रोज़नामा किसने जारी किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2
जेम्स ऑगस्टे हिक्की ने, और उसका नाम था क्या, बंगाल गेजेट। ठीक है, और ये हिंदुस्तान का पहला अखबार था। और अगर अंग्रेज़ी का पूछा जाए तो अंग्रेज़ी का भी यही था। उर्दू का आपको मालूम है, जिसके हम लोग जानते हैं, मौलवी मोहम्मद बाकिर का या जामे जहानुमा। इसके अलावा अगर हिंदी का पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हैं, उसका नाम था उत्तंड मारतंड। ठीक है, जो किसने निकाला था, शुक्ल जी ने निकाला था, और ये भी कलकत्ता से ही निकला था। अगला सवाल है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू का जो है वो पहला साहिब दीवान शायर है। कयास के मायने क्या है? नापसंद, कमतर, अंदाज़ा या भरोसा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अंदाज़ा। सौदा का पूरा नाम क्या है? सौदा का पूरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है। उर्दू में कसीदा निगारी की शुरुआत कहाँ हुई? तो दक्कन में हुई। और उर्दू के जो पहले साहिब दीवान शायर हैं, जिनका नाम है मौलवी मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उन्हीं को जो है वो शुरुआत का श्रेय जाता है। ऑप्शन ए। मशहूर कसीदा गो का नाम बताइए जिसने कसीदों को बुलंदियों तक पहुंचाया। तो आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। कसीदा के लुग़वी मायने क्या हैं? इजहार करना, मग़ज़, दिल, आँखें। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मग़ज़ गलीज़। मौलाना शिबली नोमानी की मशहूर किताब कौन सी है? तो शेरुल अजम है। ऑप्शन 2 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तहज़ीबुल इखलाक रिसाला किसने निकाला? तो ये सर सैयद ने निकाला था 1870 में बनारस से। फसाने अजाइब किसकी दास्तान है? मीर अमन की, मुल्ला वजी की, रजब अली बेग सुरूर की या मीर तकी मीर की? आंसर हो जाएगा रजब अली बेग की सुरूर की तसनीफ़ है फसाने अजाइब, जो लिखी कहाँ गई है? कानपुर में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। उर्दू कसीदा निगारी में सौदा के बाद किसी का नाम लिया जाए तो वो हो सकते हैं फ़ानी बदायूनी, ज़ौक़ दहलवी, गुलज़ार नसीम या आल अहमद सुरूर। तो आंसर हो जाएगा ज़ौक़। क्वेश्चन नंबर 116 है दुनिया जिसका नाम मियाँ ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। इस शेर के खालिक कौन है? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा, ब्रज नारायण चकबस्त, मोमिन खां मोमिन या नज़ीर अकबर आबादी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ये नज़ीर अकबर आबादी की शेर है, यह उस नज़म से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अवामी शायर कौन है? तो अवामी शायर हम लोग नज़ीर अकबर आबादी को मानते हैं। ऑप्शन ए। मीर हसन की मशहूर मसनवी कौन सी है? बागो बहार, गुलज़ार नसीम, गुले बहार या शहरुल बयान? आंसर हो जाएगा 4 यानी कि शहरुल बयान। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उर्दू गज़ल का इमाम किसे कहा जाता है? तो उर्दू गज़ल का इमाम वली दक्नी को कहा जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो वली दक्नी नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी हमें लगाना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मीर तकी मीर को उर्दू गज़ल का इमाम कहा जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शुमाली हिंद में उर्दू का पहला शायर कौन है? काशिफ़ी, फ़ाइज़ दहलवी, फ़ज़ल अली खां फ़ज़ली या इंशा पुरदरास? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि जाफ़र फ़ाइज़ दहलवी। अगर ऑप्शन में आप लोग यहाँ पर जाफ़र जटल्ली देखते हैं तो आंसर आपको जाफ़र जटल्ली भी लगाना पड़ सकता था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो फ़ाइज़ दहलवी करेक्ट हो जाएगा। सबरस का तख्लीक़कार कौन है? मुल्ला वजी हैं। करबल कथा के मुसन्निफ़ का नाम बताना है, फ़ज़ल अली खां फ़ज़ली। ऑप्शन 3 हो जाएगा। किस ज़बान को 2 सगी बहनें कहा जाता है? अंग्रेज़ी व उर्दू, उर्दू व हिंदी, हिंदी और हिंदवी, फ़ारसी व उर्दू? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 उर्दू व हिंदवी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। करबल कथा किस फ़ारसी किताब का उर्दू में तर्जुमा है? तो ये किताब रोज़तुश शोधा का तर्जुमा है। ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। मीर अमन दहलवी से कौन सी किताब मंसूब है? गंज खूबी, बागो बहार, गोदान या उमराव जान अदा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंज खूबी।